Hello. Hello. Yeah, so hello everyone. I guess सबको टॉपिक पता है आज का. एक सेकंड Hello. मैं बस How is ये just wait 1 second. रिकॉर्डिंग का देख लेता ना एक सेकंड. हाँ, चल रहा ना, स्टार्ट है ना रिकॉर्डिंग. Everyone is okay with that, otherwise. Shall I start? हाँ, तो okay then, let's start. Okay, so good night everyone. I am Ayush Shukla. I guess most of you might be knowing me already. I study in second year at Hadumal Sahani College, and I love systems programming. I have been doing a lot of C, C++, assembly since a long time. So today, what I'll be liking to speak about is your OS boot process. So it is not generally just related to your operating systems. We are going to talk about how generally any kind of boot processes will be working in any sort of a hardware, be it embedded Linux. Those concepts that you will be learning will be applicable to all of those places. Okay, so that was a short, just a short glimpse what we'll be learning today. So first of all, I want you all to just answer a simple question. Are you all aware of how hard drives work? Magnetic disk. Yes, Yeah, little it is bit. a magnetic disk, but you do you know about how it internally works? Which one? Then now question is which one? SAN, NAS, SSD, SATA. But which one you are referring? No, just internally. How does an HDD work? Those are Okay. connectors. Those leave them aside. Mm-hmm. Just how the HDD work inside. So if you haven't seen it already, and HDD is just a stack of circular disks arranged on top of each other with multiple reading heads. These heads you are seeing, those are pointing at some location on some disk, and we have multiple of those heads and multiple of those circles of those sectors. Okay, so here comes the question. Initially, when our device is halted, and do you know how many times your hard disk rotate? Does anyone have a guess? In a minute, how many times does your hard disk rotate? Previously it was 54 RPM, then 7200, then maybe I Yeah, think but nearby. if you consider the modern standard, then how much do you guess it will be? No idea. Does anyone have Hmm. what? Uh, yeah, 7,400 is a bit much. It will be generally around 6 to 6,500 or something. Yeah, and if those are basically server grade HDDs or then there exist 10,000 RPM plus HDDs also. But those doesn't add much value in your. Those are personalized for some type of high performance systems, HPCs. So, so you just leave that aside. Firstly, we just seeing that it is rotating 5,000 times per second. Those around 6,000 if you consider, then in a second it is rotating 100 times. Those are pretty fast, right? So your disk is rotating 100 times a second, and what is basically happening is your disk reader. Those is some sort of a head that is pointing to some location on that disk. Now we are having multiple of those disks stack over each other, and each disk stores in the form of a magnetic. You know about how it stores? It stores in a difference in magnetism, not like a continuous magnetic कि यहाँ पे magnetic property है यहाँ पे नहीं है. It basically checks the difference between them and उसके basis पे वो store करता है. Okay, so the point is
कि hard disk is just a storage, like where you'll be storing zeros and ones. How do you actually decide that what will be running over there? Like whenever you are powering on a system, how do you decide that what will be running on your system if you have just this hard disk and nothing else? Question I will just give a minute to everyone to think about. I think everyone has enough time to think. Can we go ahead? Okay, okay. So to answer this, let's go a bit behind. Okay, we will first enter the stage when the CPU hasn't even instructed कि हम लोग को अभी घुमाना start करना है disk को. We are in that stage currently. Okay, you are having some desktop PC. You are plugging in the PSU. Everyone knows what an PSU is. Power Yeah. supply. Yeah, power supply. Power unit. supply unit. Yeah, yeah. So you have just plugged in your PSU. Then what do you think what will be happening? The first power supply unit, it will be meant. Okay, sorry. The first when you are having some voltage spike in your hardware, first thing that your PSU will try to do is stabilize that voltage, right? You don't want your sudden voltage to go to any of your hardware components, right? So PSU will first stabilize that voltage, and that's why you need higher watt PSUs for higher NPCs, right? And then what it'll be doing, it will be using that signal to basically reset your CPU. Now, here the question is, why do you reset your CPU? I mean, CPU is there, it has been running, okay. Why not continue from just how it was? पावर ऑफ करने पे स्टेज चला जाता है इसलिए It chala jata, that's okay, but like what are we basically achieving कि हम लोग को CPU reset करके क्या मिला? Cores को reset करना. No, the main thing was sort of not complete. तो थिंग इज कि हम लोग को ही नहीं पता ना कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है इंस्ट्रक्शन सीपीयू के. सीपीयू को चाहिए रहेगा एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर. किसी ने असेंबली पढ़ा है उसे पता होगा कि वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा एक पॉइंटर से. अभी वो कहीं पे तो रखा हुआ है वो पॉइंटर. वी डोंट नो. हमने सीपीयू बंद कर दिया था, पीसी बंद कर दिया था, वॉट एवर ग्रेसफुल शट डाउन और वॉट एवर थिंग हैज हैपेंड, हम लोगों ने बंद कर दिया था. बट वी नीड अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर ना कि वो कुछ ढूंढ पाए स्टार्ट करने के लिए. सीपीयू तो कुछ नहीं है ना. सीपीयू तो सिर्फ क्या करता है, वो सीपीयू का काम इतना है, उसके पास वो सब चीजें आते जाएंगे इंस्ट्रक्शंस, वो अलग अलग तरीके से उनको मैनेज करेगा. कभी पाइपलाइनिंग कर देगा, कभी एसआईएमडी कर देगा. अगर मल्टीपल कोर्स है तो क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस वी आर हैविंग. सो सीपीयू का काम तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. इट डजंट नो एनीथिंग अबाउट कि क्या क्या कनेक्टेड है उससे या वगैरह वगैरह एनीथिंग. तो सीपीयू का काम तो सिर्फ इतना था कि इट हैज टू डू समथिंग, बट वी डोंट नो कि वो समथिंग है क्या फिलहाल. तो मैं क्या करूं, बिकॉज सीपीयू अभी जस्ट स्टार्ट हुआ मेरा और वो कहीं पे तो पॉइंट कर रहा था, बट दैट लोकेशन इज नॉट समथिंग जो मुझे चाहिए ना. वी वांट कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसा शो हो जो मेरा फर्मवेयर वेंडर चाहता है. व्हेन यू पावर ऑन योर पीसी, अब लेनोवो का पीसी किसके पास है? यू मस्ट हैव सीन द लेनोवो का लोगो स्टार्ट करते समय, राइट? When you are having a HP का PC, you are seeing HP का logo. Or if you are using some other grub bootloader or something, तो अलग बात है, वो उसको चेंज कर देता है. But the thing is, did you understand कि just a second, I'm getting some call.
Yeah, sorry, some call came suddenly. Yeah, so my question was कि अभी तो CPU को instructions चलाना start करना है, right? So how will it know कि उसे start कहाँ से करना है? Those whatever the firmware things that you are seeing on your CPU, sorry PC, जब तुम start कर रहे हो, whatever brand CPU वो जो भी है, those majorly depend on your motherboard, your supplier, vendor जो भी है. So what is that thing? वो एक firmware है. You all understand what is an firmware? हार्डवेयर में लोड हुआ सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसे बहुत बेसिक वे में अगर समझाओ तो इट इज जस्ट नॉर्मलाइजेशन. कोई एकदम कैच मत करना मुझे, बट दोज हू डोंट नो, इट इज सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर जो आपके हार्डवेयर पे फ्लैश हुआ है. ओके, सो देयर वी हैव समथिंग नोन एज एसपीआई फ्लैश, जो एक नॉर मेमोरी फ्लैश होता है, जो बेसिकली आपके कुछ चीजें स्टोर करता है जो आपके हार्डवेयर पे ही एनकोडेड है, सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर. ओके, तो वो फर्मवेयर का कोड भी तो किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, राइट? तो व्हाट विल बी डूइंग फर्स्ट, सबसे पहले हमें वो फर्मवेयर का लाना है अपने पास. तो देयर इज समथिंग दैट वी नो एज अ रीसेट वेक्टर. ओके, सो रीसेट वेक्टर एक मेमोरी लोकेशन होता है जो होता है FFFF0. तो इफ आई जस्ट शो यू, तो व्हेन यू चेक आउट द विकिपीडिया इट विल से सबसे पहले कि डिफॉल्ट लोकेशन है CPU विल गो टू फाइंड द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इट विल एग्जीक्यूट आफ्टर ए रीसेट. तो अगर CPU रीसेट होता है तो वो रीसेट वेक्टर पे पॉइंट करेगा. So this is not a completely standard. अब ये जो लोकेशन मैंने बोला FFFF0, ये स्टैंडर्डाइज नहीं है. हार्डवेयर वेंडर्स कैन चेंज दिस ऑब्वियसली, बट ओवर टाइम वी हैव अग्रीड की जो इंटेल फैमिली के प्रोसेसर्स है, IA32, IA64 टाइप्स वाले, वो सारों ने अग्री किया कि यस वी विल कीप द रीसेट वेक्टर एफ FFFF0. ओके, सो ये वो वेक्टर है जहां पे सबसे पहले योर CPU विल बी पॉइंटिंग टू स्टार्ट योर एग्जीक्यूशन. ओके, सो यहाँ पे जो भी आपका बायोस है, बायोस फर्मवेयर है, वो लोडेड रहेगा. तो यहाँ पे द मेन क्वेश्चन कम्स की ओके वी हैव लोडेड द SPI फ्लैश, वी हैव स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग इट. ओके, तो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, इतना तो हो गया. तो CPU या कुछ आगे रहने डाउट? तो ये रीसेट वेक्टर किधर होता है? रीसेट वेक्टर इज इन योर मेमोरी. इफ यू नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जैसे कि जो आपका SPI फ्लैश होता है, हैव यू हर्ड अबाउट द SPI फ्लैश? नो. तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ लाइक नॉन मेमोरी जो चीजों को स्टोर ही रखता है हमेशा. उसका काम सिर्फ इतना है जो रिटेन करता है. अगर उसको पावर नहीं भी मिले तो वो उसको उधर ही रिटेन करके रखता है उस डेटा को. ओके, तो इफ यू चेक अबाउट सच फर्मवेयर मेमोरीज, तो अब CPU का तो काम ये है कि वो रैम में से डेटा रन. CPU का तो काम वो भी नहीं है. CPU का काम है रैम से डेटा अपने कैश में लाना, कैश से रजिस्टर्स में लाना, फिर वो रन कर पाएगा उसको. दोज आर लॉन्ग प्रोसेसेस इन्वॉल्व. इसलिए जैसे जैसे हम लोग आगे आगे जाते हैं अपने हायरार्की में, मेमोरी सिस्टम के मेमोरी हायरार्की में, वैसे हम लोग की CPU के लिए चीजें स्लो हो जाती हैं. ओके, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि L3 कैश में है तो इट विल बी फास्टर देन रैम एंड सो ऑन. तो अभी तो जो चीज है वो एक अलग ही स्टोरेज में है जो है फर्मवेयर का फ्लैश स्टोरेज. मैं पहले उसको लाना चाहता हूँ मेरे रैम में, राइट? तो ये काम हैंडल करेगा आपका फर्मवेयर. अब जो रीसेट वेक्टर है वो ऐसा पॉइंट ही करता है उस लोकेशन पे जहाँ पे वी हैव अग्रीड कि हम उसको लाएंगे फर्मवेयर को. ओके, तो जो फर्मवेयर का कोड है वो जैसे ही रीसेट वेक्टर पे आया, अवर CPU विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट. तो द थिंग इज कि फिर फर्मवेयर फ्लैश में है क्या? आई विल गिव अ फूड फॉर थॉट टू एवरीवन, जस्ट 1 मिनट. कि आप सोचो कि आप अगर एक PC बेचते हो और उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे रैम है, आपके पास रोम है, मेमोरी है, सब कुछ है, राइट? तो व्हाट यू विल बी ट्राइंग टू डू फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या कोशिश क्या रहेगी करने की? कि आपने जैसे ही अपना कोई भी फ्लैश सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर बनाया है तो उसमें आप करने को क्या ट्राई करोगे? सो व्हाट यू विल बी ट्राइंग टू डू?
Anyone have any guess? OS कि install? यार नो अरे ओएस का लेना, ये फर्मवेयर का काम नहीं है। ये जो भी आपका वेंडर है जो बेच रहा है उसका काम है, ठीक है, ओएस लाना। लेकिन ओएस लाने के पहले आपको देखना भी तो पड़ेगा ना कि आपका सिस्टम ओएस लाने के काबिल है भी कि नहीं, कि आपका कोई रैम का वायर ही कटा हुआ है और आप सीधा बोल दो कि ओएस लाना है, तो क्या होने लग जाएगा। तो आइडियली फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, सबसे पहले एज अ फर्मवेयर वेंडर, एज अ मदरबोर्ड मेकर, मैं हार्डवेयर को प्रोब करना कि कौन सा हार्डवेयर अवेलेबल है एंड ऑल। एग्जैक्टली। तो दिस इज समथिंग दैट वी कॉल एज अ पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट ऑफ फर्मवेयर ये सबसे पहले स्टेप्स होते हैं। तो वो जो पोस्ट करता है दैट इज समथिंग कि वो जब सीपीयू ने अपने आप को स्टार्ट किया तो वो एक तरीके का सेल्फ टेस्ट स्टार्ट करेगा। सेल्फ टेस्ट में क्या करेगा, आपका जो वीडियो कार्ड है उसको चेक करेगा, आपका जो रैम है उसको चेक करेगा, योर बसेस आर प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। अब सी बसेस भी आपके एड्रेस बस होते हैं, वो आराम से 24 तक होते हैं, बट द थिंग इज कि फॉर कंपैटिबिलिटी हम लोग स्टार्टिंग में सिर्फ 19 तक रखते हैं, A0 से लेके A19 तक। अब A20 जो है ना वो एक स्पेशल बस है, जो एड्रेस बस है, जो मैं बाद में बताऊंगा कि A20 हम लोग बाद में क्यों चालू करते हैं। ओके, इट विल कम बट लेटर ऑन। फिलहाल तो बस इतना समझो कि एड्रेस बस क्या करता है। एड्रेस बस जैसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह में किसी चीज का एड्रेस भेजना चाहते हैं तो हम लोग वो बस के थ्रू भेजते हैं। बस क्या समझोगे, बस एक तरीके का चैनल है जिसके आप थ्रू 0 या 1 ऐसे कुछ डेटा भेज सकते हो। ओके, तो अगर आपके पास 19 मतलब 2 टू पावर 20 तरह के एड्रेसेस आप उसमें भेज सकते हो, 0 से लेकर 19 20 है, तो हर एक में अगर आप 0 1 डालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 20 बार आप 2 टू पावर 20 एड्रेसेस को भेज सकते हो। बट द पॉइंट इज कि ठीक है उतना, बट वो सब चीज़ें वर्क भी तो करनी चाहिए ना, मुझे वो भी टेस्ट करना है, मुझे ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। तो अगर इस वे में कुछ गड़बड़ हुई तो क्या किसी के डिवाइस में कभी ऐसा हुआ है कि उसका कभी हार्ड डिस्क बंद हो गया हो और जब वो अपना पुराना पीसी स्टार्ट करता था तब बीप बीप बजने लगता था, किसी के साथ हुआ है ये चीज? पोस्ट कोड्स की बात कर रहे हो क्या? हाँ, तो होता ये था कि पहले अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं होता, बट द थिंग इज इट इज सॉर्ट ऑफ बिट हैंडल यूआई साइड पे भी करेंटली। बट द मेजर फेलियर वाज कि अगर कुछ उसी पॉइंट पे एरर आ जाए सबसे पहले पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे व्हाट योर सिस्टम डज, इट ट्राइज टू टेल यू कि थ्रू बीप कोड्स कि बूप पूप पूप पूप, सीपीयू में एरर है तो ऐसे टाइप का कोड, अगर कुछ और एरर है तो ब्लिंक या ब्लिंक ऐसा कुछ अलग तरीके से, या फिर आपके जो एलईडीज है उसमें शो करेगा, जो आपके डिवाइस पे पावर ऑन बटन है वहां पे अगर कहीं पे भी कुछ इशू है तो अदर एवरी वेंडर हैज सम वे ऑफ टेलिंग कि हाँ ऐसा कुछ तो एरर आ रहा है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कभी कि उसका हार्ड डिस्क जब मोस्टली ऐसा होता है हार्ड डिस्क वालों के साथ कि उनका हार्ड डिस्क जब है वो पुराना हो जाता है, तो जब वो रोटेट होना स्लो हो जाता है, बंद हो जाता है, तब वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं होता, तब ऐसा हो जाता है कि कभी कभी वो बीप बीप बजने लगता है स्टार्टिंग में। तो दैट इज योर फर्स्ट स्टेज, वो आपका फर्स्ट स्टेज आपके सामने है, जो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, कि मैं जब पावर ऑन कर रहा हूँ वो खुद को चेक कर रहा है सारी चीजों को वेरीफाई करने के लिए। अब एक बार उसने वेरीफाई कर लिया है तभी वो प्रोसीड करता है आगे। ओके, अब सीपीयू के बाहर सोचो, आप क्या क्या इमेजिन कर सकते हो इन योर पीसी, अपने पीसी में क्या क्या होता है। GPU, RAM, storage. यस यस, मैनी थिंग्स, बहुत कुछ होता है हमारे पूरे मदरबोर्ड में, हमारे पूरे पीसी में कैमरास और ड्राइव, उन सब चीजों को चलाने के लिए ड्राइवर्स लगते हैं उनके, तो लाइक मैनी थिंग्स आर देयर। तो अब मैं उनको वन बाय वन जो है मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं उनके प्रॉपर फंक्शनिंग चालू कर पाऊँ। मैंने ये तो चेक कर लिया कि वो लोग ठीक है वर्किंग स्टेट में है, तो अभी मैं स्टार्ट में करूँ क्या फिर, मुझे सबसे पहले आइडियली क्या करना चाहिए?
ठीक है, चेकआउट हो गया, पोस्ट में चेक कर लिया हम लोगों ने। ओके, अभी This What, is what? basically OS upload. after the logo shows on the screen, right? एक बार मेरे को Lenovo, HP वो सब का लोगो दिख गया, उसके बाद क्या करना है? हाँ Is that what एग्जैक्टली, you're अब asking? ठीक है, अब आ गया फर्मवेयर में, मैंने जो भी था सामने दिखा रहा हूँ अभी। अभी मैं दिखाने वाला स्टेज चल रहा है, तो वो दिखाते दिखाते मेरे को क्या क्या चीजें करनी है आपको आइडिया भी नहीं होगा, लेकिन जस्ट थिंक कि आपका जो अभी मैं जो आगे बताने वाला हूँ पूरी कहानी, यू हैव टू रिमेम्बर कि आप अपना पीसी चालू करते हो और वो 3 से 4 सेकंड में स्टार्ट हो जाता है टिल ओएस लॉगिन स्क्रीन तक। विल यू ऑल एग्री? कभी स्लो होता है बट लाइक मेजरली एकदम जल्दी हो जाता है इतने टाइम पे। तो देयर आर हाँ लॉट्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन दैट आर हैपनिंग और ये सब चीजें बहुत जल्दी हो रही है। ठीक है, तो थिंग इज कि ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़े टेक्निकल टर्म्स इंट्रोड्यूस करता हूँ। सबसे पहले मैंने एक ट्रिगर दिया पीसी को। ट्रिगर क्या था मेरा? मैंने पावर ऑन किया, पावर ऑन किया, वो एक ट्रिगर है। अब क्या हुआ, जो पावर ऑन हुआ है तो हमारे पीसी में एक होता है ATX कनेक्टर, वो ऑन हो जाता है। फिर पीएसयू क्या करता है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने लगता है और फिर स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। ओके, अब हमारे घर पे एसी आता है, सबको पता है ये चीज, राइट? तो पीएसयू जो है उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा। अब उसके बाद पीएसयू थोड़ा वेट करेगा स्टेबलाइज होने को, और फिर जब पावर ओके होता है तब पीएसयू जो है वो एक तरीके का सिग्नल भेजता है जो होता है पावर ओके। ओके, तो इसके बाद क्या होता है कि सीपीयू को अब मिल गया कि हाँ चलो अब सब सही है, अब पावर मिल गया हमें, हम रीसेट होंगे। रीसेट हो गया सीपीयू। अब रीसेट वेक्टर जाएगा FFFF 0 पे। ठीक है, तो ये कितना नीचे है, मान लो अगर मैं हाउ डू यू आई टेल यू। ठीक है, फिलहाल सोचो कि आपका रैम भी तो लोड ही करना है ना। रैम भी तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ना जो हमें चेक करना है, बट सीपीयू कहाँ से उठा रहा था सारे इंस्ट्रक्शन? रैम से उठा रहा था। हाँ, तुम लोग वो देख रहे हो कि दिक्कत क्या आ रही है, कि हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए रैम में से उठा उठा के लोड करके, बट अभी रैम ही नहीं है मेरे पास। तो डू यू वही ऑल एग्री ये चीज? वो रीसेट वेक्टर से ले रहा है ना इनिशियल इंस्ट्रक्शन, रैम से। रीसेट वेक्टर भी तो एसपीआई फ्लैश को लाके उधर रैम पे डाल रहा है ना पहले। तो ठीक पहले है, RAM इनिशियलाइज अभी तो करेंगे। ये चीज है ना, ये चीज कंप्लीटली हार्डवेयर साइड पे हैंडल करनी पड़ती है। हम लोग मैप करते हैं एसपीआई के फ्लैश चिप को सीपीयू के एड्रेस पे, एग्जैक्टली कि हम लोग उधर से लाके इसको सीपीयू के एड्रेस में पटकेंगे। वी डू दिस कम्प्लीटली ऑन दी हार्डवेयर साइड, ये हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये हर जो वेंडर है वो खुद से करता है। ठीक है, तो तो अभी जो है वो रैम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ना उसमें, जो जब भी सीपीयू रीसेट वेक्टर से फेच कर रहा है तभी रैम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। या क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल मेमोरी कंट्रोलर ही नहीं है। हम्म। हम्म, तो फिलहाल द थिंग इज कि सीपीयू एड्रेस पे गया, रीसेट वेक्टर पे गया, व्हाटएवर, अभी कुछ भी नहीं है। मेमोरी यूज अपने डायरेक्ट मेमोरी से देख रहा है। अभी तक कुछ पेजिंग वगैरह जो भी हम लोग ने ओएस में पढ़ा है ना, पेजिंग सेगमेंटेशन वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है फिलहाल हम लोग के पास, क्योंकि हम लोग के पास फिलहाल रैम ही नहीं है, मेमोरी ही नहीं है। तो अभी सबसे पहले हम लोग आते हैं कहानी पे कि फिर हुआ क्या। अब यहाँ पे जो है ना पोस्ट और ये जो रोम आने का, अब ये जो सेकंड वाला स्टेज है। हाँ, अच्छा एक पेज शायद मेरे कोड से गायब हो गया, आई डोंट नो, या फिर नीचे चला गया। अच्छा ओके, तो आई विल जस्ट टेल यू ऑल। हम लोग के सबसे पहले वी हैड समथिंग नोन एज अ बायोस। सबने सुना है बायोस? इज देयर एनीवन जिसने बायोस नहीं सुना है? सबने बायोस सुना है, राइट? सुना तो है मैं क्वेश्चन है कि बायोस है क्या फिर? क्या क्या क्या? बेसिक सुना है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, समथिंग लाइक दैट। वी कॉल इट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बट ऐसा क्या है फिर वो कि वो सिर्फ इनपुट आउटपुट कर रहा है, तो हमें उसका फायदा क्या है फिर?
उसका कुछ तो काम है ना, राइट? वी कॉल इट वे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आईओ सिस्टम, बट वो तो हम लोग ने अपने लिए बनाया है कि वो इनपुट आउटपुट के लिए बना था, बट उसका कुछ तो काम होगा ना कि वो आगे लेके कैसे जा रहा है चीजों को, उसके नाम। I ये एक guess ऐसा केस है। हाँ हाँ what I understand from it is basically it initializes the hardware, verifies everything, and hands over it to kernel. This या is what I. एग्जैक्टली तो ये चीजें हो कैसे रही है इनसाइड? तो कुछ तो ऐसा हो रहा है ना कि बायोस करके कोई एक जादू है जो कहीं पे स्टोर्ड है। बायोस ही वो चीज है जो फर्मवेयर में जाके स्टोर्ड है। जो मैंने आपको बोला कि फर्मवेयर में कुछ तो ऐसा जादू स्टोर्ड है मेरे, जो लोड होने वाला है सीपीयू के पास, तो वो बायोस ही वो जादू है जो फर्मवेयर में स्टोर्ड है। तो अब ये जो बायोस है जो जादू करने वाला है, वो सारे हार्डवेयर को देखने वाला है, चलाने वाला है, बट द थिंग इज कि ये 16 बिट मोड में चलता है। डज एनीवन हैव द आइडिया ऑफ अ रियल मोड और प्रोटेक्टेड मोड? ये दोनों चीजें के बारे में पता है किसी को? नो वन? अच्छा ओके। तो रियल मोड इज समथिंग दैट इज कंप्लीटली फॉर कंपैटिबिलिटी। अब हुआ ये था कि बायोस जब बना था ना, दैट वाज द टाइम कि हम लोग ट्रांसफर हो रहे थे 80286 से 80386 में। 80386 को हम लोग आज के टाइम पे बोलते हैं i386। अगर कोई लिनक्स वगैरह में काम करता है, फिर कभी देखा होगा तो लिनक्स वाले कॉल दैट सिस्टम एंड i386 सिस्टम, जिसको 80386 भी बोलते हैं, जिसमें मेजोरिटी हमारे एडवांसेस हुए थे, पाइपलाइनिंग वगैरह ये सब चीजें एडवांस हुई थी, बहुत सारी चीजें आई थी। तो दैट वाज अ ट्रांसफरिंग स्टेज कि हम लोग 16 बिट से 32 बिट में गए थे, एंड सिर्फ 16 बिट से 32 बिट में जाने में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। बट द थिंग वाज कि मेजोरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर्स एंड एवरीथिंग वर स्टिल रिलाइंग ऑन द 16 बिट मोड, राइट? तो हमें एक ऐसा फॉल बैक चाहिए था कि वो चीजें अभी भी रन कर पाए। ऐसे तो ओएस भी बन गए थे जो कि सिर्फ 16 बिट मोड में चलेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम सी कंप्यूटर्स बने ही क्यों थे? कंप्यूटर्स का काम ही यही था, प्रोसेसिंग। उनका नंबर क्रंचिंग के लिए बने थे। उनका कभी काम ये नहीं था कि मैं जो अभी बैठ के ब्राउजिंग वगैरह ये सब कर रहा हूँ। अ मेन गोल विद कंप्यूटर वाज टू क्रंच नंबर्स, राइट? तो हमारे पास स्टार्टिंग के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो कंप्लीटली उसी चीज पे रिलाय होके बन रहे थे 16 बिट तक। बट वी वांट टू मेंटेन अ कंपैटिबिलिटी, एंड जो अगर ज्यादा काम करता है सॉफ्टवेयर वगैरह में, उनको पता होगा कि कंपैटिबिलिटी मेंटेन करना कितना हेडेक होता है, राइट? यू ऑल अग्री कि एक भी वर्जन चेंजेस पे अगर कुछ भी क्रैशेस होते हैं देन कितना हेडेक हो जाता है वो। Yeah. सो दैट इज अ थिंग कि हम लोग के ऊपर लिमिट है। तो हुआ ये था कि 16 बिट के पास हम लोग के पास 20 बिट के एड्रेस बस ही होते थे, तो वी वर लिमिटेड कि हम लोग 2 टू द पावर 20 एड्रेसेस ही रिफर कर सकते हैं। और अगर आप 2 टू पावर 20 को देखोगे ना, तो दैट इज बेसिकली 1 MB। तो मतलब वी आर कमिंग फ्रॉम द स्टेज कि अभी हम लोग उस जगह पहुंचे जहां पे हम लोग सिर्फ एक मेमोरी देख पा रहे हैं। जब हम लोग का सीपीयू 16 बिट रियल मोड में स्टार्ट हो रहा है, तब वो कंपैटिबिलिटी के लिए चालू हो रहा है। और ये बायोस की बात हो रही है। वी विल गो ऑन आगे कि यूएफआई क्या है और वो कैसे इस चीज को फिर टैकल करके। नाउ करेंटली वी डोंट हैव द 16 बिट रियल मोड, ओके? तो करेंटली हम लोग को पता है कि कंपैटिबिलिटी वगैरह सब ब्रेक हो गई, वो जमाने पुराने सॉफ्टवेयर चले गए। हमारे पास अभी नई चीज है कंपैटिबिलिटी देखने को। तो ओके, वो सब के आगे भी बढ़ गए, बट योर पुराने पीसी जो अभी भी लैपटॉप्स होंगे लोगों के पास, मोस्टली बायोस वाले होंगे। यू ऑल अग्री? तो स्टिल यू मस्ट हैव सम नॉलेज, एंड हम लोग Yeah. उसमें भी अभी बूट सेक्टर वाले सॉफ्टवेयर्स बनाने वाले, ओके? तो तो द वो थिंग वाज व्हाट जो protected that you were saying, what exactly is that? Just to या मैं वही बताने वाला हूँ कि 80286 में ऐसा हुआ कि हम लोग जो थी इसमें लिमिटेड थे 16 बिट मोड में, और हम लोग के पास 20 एड्रेस बस थे जो भी थे। बट द थिंग वाज कि 80386 आते ही हम लोग के पास 32 बिट के रजिस्टर्स आ गए। और अगर किसी को नहीं पता कि 2 द पावर 16 और 2 द पावर 32 में कितना फर्क है, तो एक बार देखो जरा, उसको चेकआउट करो। तो द थिंग वाज कि वी आर हम लोग के लिमिट्स बहुत सारे एक्सपांड हो गए। इफ यू डोंट स्टिल हैव द आइडिया ना, तो पहले हम लोग जो एड्रेस कर पा रहे थे ना 2 टू पावर 20 बिट्स,
वो 1 MB था, लेकिन 1 MB से हम लोग जब i386 में आए, तब we can address 4 GB of storage. You all see how much of a jump that was? You all agree with me on that? So Yes. Like exactly, huge 1 jump. MB से it was directly we could address 4 GB of storages. तो 80386 was a wild jump, and इसकी वजह से ही तो हमें compatibility मेंटेन करनी पड़ रही थी. तो the thing was कि हम लोग ने क्या डिसाइड किया कि ठीक है, हम लोग अब जाएंगे हार्ड डिस्क के पास वापस से. ठीक है, वापस से गए हम हार्ड डिस्क के पास. तो हार्ड डिस्क में जो हम लोग का हार्ड डिस्क का फोटो, ठीक है, तो हम लोग ने बोला कि हार्ड डिस्क में सबसे पहला सेक्टर, सबसे पहली जगह पे हम लोग जाके रख देंगे बूट वाला कोड. बूट वाला कोड रखेंगे. बूट वाला कोड, अब बूट कोड क्या है? क्या बूट कोड में हम लोग को रखना क्या चाहिए? आइडियली व्हाट यू ऑल शुड एग्री कि ऐसा क्या होना चाहिए बूट कोड में जो हम लोग का आगे जाके ओएस लोड कर पाए. जहाँ पे ओएस का लोकेशन है. हाँ, नहीं ठीक है, वो सब चीजें होनी चाहिए. ओएस से पहले वी शुड से कर्नल. यू ऑल एग्री? हाँ, सो अगर मैं फोटो में दिखाऊँ, अगर Okay. कुछ बढ़िया फोटो है मेरे पास तो नहीं, अगर सेक्टर 0 डिस्क का मेरे को हाईलाइट करके मिल जाए, या सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, कि जो मेरा ऊपर वाला भी सबसे पहला सिलेंडर है, उसका भी सबसे पहला जो ट्रैक है, उसका भी सबसे पहला जो सेक्टर है, ये अब एक एक सेक्टर 512 बाइट का होता था. ठीक है, तो जो सबसे पहला सेक्टर है, सेक्टर 0, उसमें हम लोग रखते थे हमेशा बूट वाले कोड को. तो अभी लिमिटेशन समझो कि हम लोग के पास बूट वाला कोड रखने के लिए 512 बाइट्स ही है. तो अब बोलोगे कि 512 बाइट ही क्यों? तो रीजन इज बड़ा सिंपल, हम लोग उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी. हम लोग का काम ये था कि हम लोग को आगे जाके सिर्फ ओएस को लोड करना है. हम लोग का काम ये थोड़ी कि हम लोग को ओएस बूट सेक्टर में ही बनाना है. बूट सेक्टर का काम ये होना चाहिए कि वो चीज़ों को लोड करके रन कर पाए. अब i386 के समय से देखो तो 512 बाइट इज इनफ. बट अगर तुम लोग आगे जाओगे, अब ये उस जमाने का कोड है कि अगर आपके पास फ्लैश मेमोरी होगी ना, फ्लैश मेमोरी समझते हो, फ्लॉपी डिस्क. तो फ्लॉपी डिस्क में जो होता है ना सर्कल, ऐसे ही होता है एक, तो उसका भी आप सेक्टर 1 512 बाइट का होता है, वहां पे भी बूट वाला कोड रख सकते हो. ओके, तो थिंग इज कि ऐसा स्टैक ऑफ जो प्लेट्स होता है ना, इट फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ अ सिलेंडर. सिलेंडर 0, सिलेंडर 1, ऐसे नीचे नीचे कर करके सिलेंडर्स होते, और हर एक सिलेंडर के ऊपर नीचे 2 ट्रैक्स होते. ट्रैक्स इज व्हाट, कि ये जो ट्रैकर, सॉरी आर्म, जिसको आर्म बोल देते हैं, तो वी हैव एक ऊपर आर्म और एक नीचे आर्म. तो हम लोग दोनों साइड पे स्टोर कर पा रहे हैं, और हम लोग उसके स्टैक्स को रखते जा रहे हैं एक के ऊपर एक. तो हम लोग के पास बहुत सारे सिलेंडर भी है, और बहुत सारे ट्रैक्स भी है, और हेड्स भी बहुत सारे एक के ऊपर एक. कोई इसका विजुअल व्यू बना पा रहा है? कि अगर नहीं विजुअल व्यू आ रहा तो मैं कुछ और फोटो दिखाऊं. कि वी हैव मल्टीपल स्टैक्स ऑफ सिलेंडर्स, उनके ऊपर नीचे दोनों तरफ ट्रैक्स है जो उनको चेक कर रहे हैं दोनों लोकेशन से. एंड सिलेंडर पे, कौन से सिलेंडर पे कौन सा हेड टारगेट हो रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, एंड उस पे भी कौन से लोकेशन पे उस सर्कल पे वो टारगेट हो रहा है. एक सर्कल में भी बहुत सारे सेक्टर्स है, एज यू कैन सी. अब ये सेक्टर्स में डेटा कैसे स्टोर होता है, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग. वो अलग पार्ट में आ जाता है. वो हम लोग देख रहे हैं कि बाहर आते आते डेटा डेंस हो रहा है, अंदर जाते आते कम हो रहा है, तो वो चीज़ कैसे हैंडल होती है. तो दिस इज अनदर थिंग, वो हम लोग अभी अपने आप को नहीं उससे कर रहे, बिकॉज दिस वुड बी द मिनिमम व्हाट वी कैन से जनरलाइजेशन दैट विल बी मेकिंग, कि हमें पता है कि ऐसा कुछ होता है. अब ये जो हेड है, सिलेंडर है, सेक्टर है, ये मैंने क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यू विल बी थिंकिंग कि इसका तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है. बट यार यू आर रॉन्ग, बिकॉज हम लोग को एड्रेस करनी है चीज़ें कि मेमोरी में चीज़ें कहाँ स्टोर है. तो इंसानों के दिमाग में सबसे पहला थॉट ही क्या आएगा कि हम लोग सिलेंडर बता देते कौन सा, हेड बता देते कौन सा,
और सेक्टर बता देते कौन सा। डोंट यू ऑल अग्री विथ दिस पर्टिकुलर फॉर्म? आपके दिमाग में भी सबसे पहला थॉट यही आएगा कि अगर आपको किसी मेमोरी लोकेशन में जाना है तो आप वही चीज बताओगे जो मैंने बताया। हाँ एग्जैक्टली राइट। तो द थिंग इज कि दिस वाज समथिंग दैट वाज वेरी कॉमन एंड इसी इसी से हम लोग का जो आया दैट वाज समथिंग नोन एज CSS फॉर्मेट। ये एक तरीके का एड्रेस देने का तरीका है हार्ड डिस्क ड्राइव में कि हम लोग बता देते कौन सा सिलेंडर, कौन सा हेड और कौन सा सेक्टर। तो ये हम लोग क्यों बता रहे हैं, इसका नीड ही क्या है हम लोग को? तो अगर तुम समझो, तो अगर जब मैं बूट को तो मैं सेक्टर 0 पे रख लूंगा तो वो तो मैं किसी तरह बोल पाऊंगा मेरे डिवाइसेस को कि आप सेक्टर के इधर 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 चले जाना। लेकिन वो बूट कोड भी तो बताना चाहिए ना कि चीजें कहाँ पे स्टोर है जो चीज रन होने वाली है। समझ रहे हो कि हम लोग को मेन तो अपना कर्नल और ओएस को लोड करना है या जो भी प्रोग्राम है अपना, तो वो चीजों का एड्रेस भी तो देना पड़ेगा मुझे। Okay, so that was something that came as known as the cylinder head sector format. अब ये एक तरीके का 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसको नहीं समझ रहा ना, अब इसको अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े ना कि एक्चुअली में अगर इसको लॉजिकल एड्रेसेस में बांधोगे, लॉजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं? अब हम लोग जब स्टोर कर रहे हैं एड्रेस को तब तो हम ऐसे कर रहे हैं ना 0x1AA22 ऐसे एड्रेस में स्टोर कर रहे हैं। आप एग्री करते हो कि हम लोग बिट्स एंड बाइट्स में एड्रेसेस दे रहे हैं? अब वो बिट्स एंड बाइट्स को हम लोग एड्रेस को एक तरीके का पॉइंटर बना रहे हैं, वो लिख के बिट्स एंड बाइट्स को। अब हम लोग वो को CHS में कन्वर्ट कैसे करें? एंड इफ यू आर थिंकिंग इट इज एन इजी प्रॉब्लम देन इट कंज्यूम्स सम अमाउंट ऑफ साइकिल्स। ऐसा नहीं कि बहुत इजी है वो, बिकॉज इफ आई शो यू द फॉर्मूला देन हाँ या तो अगर आपको लॉजिकल एड्रेस निकालना है फ्रॉम CSS देन सम टाइप ऑफ वेयर इट इज या ऐसा कुछ फॉर्मूला है कि जो सिलेंडर है इनटू नंबर ऑफ हेड्स प्लस h इनटू नंबर ऑफ सेक्टर्स प्लस s-1 ऐसा कुछ। तो नो आई डोंट एग्री विद दिस, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। बट पुराने जमाने में लोगों को उतना आइडिया नहीं था एंड धीरे धीरे मतलब इतना टाइम भी नहीं था इन दोनों के गैप्स में, बट वी केम टू नो एज समथिंग नोन एज एन LBA, लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग। हम लोग को ये चीज हर बार कैलकुलेट करनी पड़ रही थी व्हेन वी आर वांटेड टू रेफर टू समथिंग कि सम लोकेशन पे। तो अगर ये चीज मुझे हर बार ही करनी पड़ रही तो मैं इसको किसी तरह ओवरऑल ही हैंडल ना कर लूं। यू ऑल एग्री कि तो इसी तरह से जन्म हुआ LSN का, जिसको बोलते हैं लॉजिकल सेक्टर नंबर या लॉजिकल ब्लॉक नंबर, लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस। तो LBA इज समथिंग दैट इज यूज्ड नाउअडेज कि हम बोलते हैं कि हम लोग अब सेक्टर्स में सबको जाने देंगे, हम लोग ना काउंटिंग करेंगे। तो जो इनिशियल सेक्टर है वो 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे ऐसे जाते जाते होगा, फिर वापस से स्टार्ट होगा, वापस से ऐसे कर करके जब खत्म हो गया तब नीचे वाले के लिए स्टार्ट होगा आगे। तो वी आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ एन एरे टाइप का थिंग कि हम बता रहे हैं कि एड्रेस ऐसा ऐसा सीक्वेंशियली है, तो वो हम लोग को डायरेक्टली मैप करने दे रहा है एड्रेसेस को। ठीक है, तो LBA इज समथिंग जो बाद में रियलाइज हुई। तो CHS के साथ साथ वी टेंडेड टू वर्क विद LBS। अब हम लोग का LBA और CSS की कहानी मैंने क्यों बताई आपको? क्योंकि एज ए बायो डेवलपर मुझे तो चाहिए कि लोग मेरा PC चलाएं, तो PC चलाने के लिए मुझे कुछ तो उनको लोड करके देना पड़ेगा। अब वो कुछ मेरे को भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट मान लो कि मेरा टाई अप है विंडोज के साथ, तो विंडोज ने बोला कि हम आपको ऐसा प्रोग्राम देंगे जो LBA 2 से लेके 2000 तक बैठेगा। तो मतलब LBA ये हो गया 2 और इससे लेके 2000 तक जाके बैठेगा वो प्रोग्राम। वो प्रोग्राम क्या करेगा? वो प्रोग्राम होगा आपका विंडोज का बूट स्क्रीन। तो जब आपको याद है आपका जब विंडोज खुलता है तो विंडोज गोल गोल घूमता है, जिसमें आपका लिनक्स वाले नहीं समझेंगे, विंडोज वाले बहुत घूमते हैं, राइट? तो विंडोज में वो चीज होती है, तो वो कुछ तो प्रोग्राम है जो घूम रहा है। तो आपका जो बायोस था उसने जाके वो ट्रांसफर दे दिया विंडोज को। तो अगर आप वो ट्रांसफर देने के पहले ही आपके लेनोवो वाले स्क्रीन में एस्केप प्रेस करते हो
तब आपका UEFI सेटिंग्स खुल जाता है, खुलता है या नहीं? हाँ तो इट मीन्स कि ये चीजें बहुत पहले हो रही है, विंडोज लोड होने के पहले हो रही हैं। एंड हम लोग फिर उसमें जाके जब हम लोग को लाइव बूट करना होता है तब हम बोलते हैं कि नहीं हमें दूसरा कुछ बूट करना है, तो हम जाके सिलेक्ट कर देते हैं कि हमें ये बूट करना है। दिस इज हाउ यू बूट एनी अदर सॉफ्टवेयर, एम आई राइट? अगर मैंने एक लाइव यूएसबी बनाया उसको मैंने डाला, वेट ब्रेक हो रहा है वॉइस किसी का। I guess you can continue. So Yes. या सो थिंग वाज कि ठीक है, वी फाउंड सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट कि हाँ हम लोग ऐसा कोड डाल देंगे सबसे पहले वाले में। अब हम लोग सबसे पहले से ही सब कुछ लिखना क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे थे? अरे तो मेरा क्या है फिर, मैं फर्मवेयर डेवलपर हूँ, मुझे भी तो चाहिए कुछ, राइट? अब मुझे भी तो चाहिए कि मैं किसी तरह अलाउ कर पाऊँ यूजर्स को कि वो चाहिए उनको तो सिक्योर बूट एनेबल कर पाए। सिक्योर बूट से क्या होता है कि आपके जो साइंड वाले कर्नल्स होंगे वही चलेंगे, साइंड वाले बूट लोडर्स होंगे वही चलेंगे, ग्रब हो गया या विंडोज का हो गया। तो ठीक है, मुझे भी तो चाहिए ना कि सिक्योरिटी में प्रोवाइड करूँ, मुझे भी तो चाहिए कि मैं अपने साइड से प्रोवाइड करूँ, मैं प्रोवाइड करूँ कि आप अपना फैन वगैरह कंट्रोल कर सकते हो स्टार्टिंग में बायोस साइड पे ही। ओएस लोड होने से पहले आप बोल दो कि फैन ही नहीं मेरे पास, ओएस को बोल दो अपने। ये सब चीज़ें मैं चाहता हूँ प्रोवाइड करना, कि जैसे हार्डवेयर एक्सेलरेशन एनेबल करना चाहता है बंदा, केवीएम एनेबल करना चाहता है तो उसको हार्डवेयर एक्सेलरेशन चाहिए होगा। तो ये सब चीज़ें एज अ फर्मवेयर डेवलपर वो मेरे ऊपर आती हैं। तो अगर कोई बायोस में काम किया देन ही विल नो कि वो अजीब सा स्क्रीन दिखता है एनकर्सिव टाइप वाला, जिसमें लेफ्ट 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 बटन से दबाते हैं हम लोग, नीचे 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 जाते हैं, स्पेस बटन से चूज करते हैं। किसी ने बायोस वाले पीसी में कभी ट्राई किया एस्केप दबा के फर्मवेयर सेटिंग में जाने का? हाँ हाँ Yes. हाँ हाँ राइट? तो उसमें आपने देखा रहेगा कि ऐसे अजीब अजीब चीजें होती हैं। तो वो ऐसा क्यों है कि हम लोग कुछ अच्छा क्यों नहीं बना पा रहे? जीपीयू तो है हम लोग के पास, आईजीपीयू है उसमें, हम लोग कुछ अच्छा नहीं बना पा रहे। ठीक है, देयर आर सम लिमिटेशंस, हम लोग देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस है। बट एज आई टोल्ड यू कि एक लिमिटेशन बैठने वाली है कि अभी भी हम लोग कुछ एक तरीके के मोड में है जहाँ पे हम लोग 1 MB यूज कर पा रहे हैं। और वो 1 MB का लिमिट कहाँ से आ रहा है मैं थोड़े टाइम में बताऊंगा। बट फिलहाल तो जो बूट मेरा बूट सेक्टर है फर्स्ट वाला सेक्टर 0, वो सिर्फ 512 बाइट ही रख रहा है, इतना याद रखना। तो वो 512 बाइट में रखता क्या है, वी विल गो टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव समथिंग दैट इज योर MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो ये एक तरीके का फॉर्मेट है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप ये फॉर्मेट फॉलो करो। तो यहाँ पे वी विल स्विच एंड हम लोग कुछ और खेलेंगे। मतलब वी विल नॉट बी मेकिंग आवर कोड विद MBR। हम लोग चाहेंगे कि MBR के बदले अगर कोई भी पीसी है वो सबसे पहले जाके उसी लोकेशन पे जाके स्टार्ट कर रहा है, तो मैं उस लोकेशन पे मेरा कोड भी तो रख सकता हूँ। तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन है, हैज एनीवन हर्ड अबाउट बूट सेक्टर वायरस? या बाकी लोगों ने नहीं सुना है कभी? नहीं. Yes, No, explain it. सुना है। Few lines. तो बूट सेक्टर वायरस बड़ा खतरनाक वायरस होता था। इतना वाइड स्प्रेड नहीं, बट लाइक बिकॉज इट नीडेड सम एमडीआर के एस्केलेटेड पार्टीशन प्रिविलेजेस। में आता था ना, लाइक एचडीडी से। क्या क्या? आई डिडंट कैच। एमडीआर पार्टीशन में ही जाके रहता था ना, जिसके मदद से लाइक ट्रबल शूट करना बहुत बड़ा पेन होता था। हाँ तो वो मैं बताता हूँ क्या होता है एक्चुअली। नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग बट ठीक है, वो MBR पार्टीशन है क्या फिर? तो वो जाता था कि करता ये था कि वो सेक्टर 0 वाले कोड को आगे खिसका देता था और अपने वाले कोड को सेक्टर 0 में बैठा देता था। तो ये कोई भी प्रोग्राम हो सकता था यूजर स्पेस का, जिसको पास अगर प्रिविलेज हो तो वो आप उसको जैसे ही बोलोगे कि हाँ परमिशन है आपके पास, तो वो करता क्या था कि वो बूट सेक्टर में जाके सेक्टर 0 को आगे फेंक देता था कहीं पे और अपना कोड वहां पे डाल देता था। उससे होता यह था कि आपके मुंह पे आ गया बूट सेक्टर वायरस, अब वो आपसे पैसे मांग रहा है। तो बूट सेक्टर वायरस में भी एक चीज होती है कि वो टैकल करना भी उतना डिफिकल्ट नहीं है बोल सकते हैं।
क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपका जब बायोस रीसेट होने वाला है तो आपका जो SPI फ्लैश होता है वो आप कभी भी रीसेट कर सकते हो थ्रू रिमूविंग योर CMOS बैटरी। लोगों को पता है CMOS बैटरी क्या होता है? Yeah. तो आपके लैपटॉप के अंदर एक बैटरी होता है जो लाइक basically- बायोस है ना। क्या क्या ठीक है, तो यू कैन रीसेट योर बायोस बाय बेसिकली रिमूविंग इट एंड वापस से लगा के। तो ठीक है, इतना भी हार्ड नहीं था इसको टैकल करना, बट इट वाज वेरी लाइक कैची कि हम लोग बूट सेक्टर में जाके चीज़ों को खिसका दे रहे, एंड इट इज़ नॉट वेरी हार्ड टू इम्प्लीमेंट। अगर आज का मैं कोड आपको कुछ दिखाऊं तो ठीक है, इफ़ यू हैव सम बेसिक आइडिया मेरे कोड के अलावा, देन यू कैन बेसिकली मेक योर ओन बूट सेक्टर वायरस सॉर्ट ऑफ, बट वो बायोस सिस्टम्स में ही काम करेगा, बिकॉज बायोस ही ऐसा है जो जाके पहले सेक्टर में जो बैठा है उसको जाके लड़ रहा है उससे। तो यहाँ पे याद रखना कि हम लोग ना, यहाँ पे वन मोर थिंग आई विल टेल यू बिफोर गोइंग टू द कोडिंग पार्ट, कि हम लोग सेक्टर 0 में कहाँ पे रख रहे हैं, हार्ड डिस्क में, बट CPU हार्ड डिस्क से नहीं रन करता। कितने लोगों को ये पता है? क्योंकि जो आपका डिस्क है वो घूम रहा है बस ज़्यादा से ज़्यादा 5000 बार, बट आपका CPU 1 सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन रन करता है पता है किसी को? हम्म नहीं, गैस ही ले लो भाई। हाँ, तो अराउंड 10⁶ 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड रन कर सकता है CPU। तो आप 10 मिलियन को इधर 5000 के घूमने वाले स्पीड से कंपेयर करो, तो डिस्क में रख के मेरा काम नहीं होने वाला। मुझे वो डेटा जल्दी से जल्दी चाहिए ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी रन कर पाऊँ, वरना फिर आप वेट करते रहते, आपका CPU बैठा रहता है और वो एक एक डेटा को बार बार मेमोरी में पहले ऊपर ऊपर ला के अपने पास ला के रन करता। तो नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, तो हम लोग मेन मेमोरी में लाते हैं उसको। हम लोग जब मेन मेमोरी हमारे रैम में लाते हैं, हाँ हाँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट क्लॉक स्पीड। या कार्तिक रेडियो? Any the clock speed of a chip is actually the number of instructions per second. That is why it is Yeah. in hertz or Yeah, yeah. gigahertz. So when you say 4 gigahertz, 3.5 gigahertz, that is the frequency at which it can execute instructions. या तो वही क्लॉक स्पीड के बेसिस पे, अब वो ऑब्वियसली हमेशा अपना टोटल क्लॉक स्पीड नहीं यूज करता CPU, दैट विल मीन एग्जॉस्टिंग योर पावर सप्लाई, बट ठीक है। हाँ, जब वो जाए कि हाँ, we have to load this memory into the main memory, sorry, the disk data into our main memory। तो हम लोग सेक्टर 0 को उठा के अपने मेन मेमोरी में लाते हैं और हमारे मेन मेमोरी में उसको स्टोर करते हैं एक अजीब से लोकेशन में जिसका नाम है 7C00। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग ये जगह याद कर लो। क्यों याद कर लो, इसका रीजन बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो अगर रीजन जानना है, इट्स नॉट वेरी हार्ड। कितने लोगों को इंटरप्ट पता है कि क्या होता है इंटरप्ट्स? नो वन? किसी ने असेंबली प्रोग्रामिंग नहीं की कभी? Basically it's like operations कॉल करने के लिए होता है ना, आई गेस बीच में, लाइक नॉट कंप्लीटली। इंटरप्ट्स इज समथिंग कि हम लोग भेज दे रहे हैं हमारे यूजर्स प्रोग्राम को, जा कर्नल में जाके बैठ वहां के प्रोग्राम रन कर। तो शॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट, वो हम लोग के OS साइड पे हो गया। तो सिमिलर थिंग वी हैव इन आवर CPU आल्सो। तो वो इंटरप्ट क्या है, सिमिलर आइडिया लगाओ यहाँ पे। तो इंटरप्ट जस्ट एक सिग्नल है, तो वो सिग्नल हैंडल कैसे करता है CPU, वो हार्डवायर करके हैंडल करता है। एंड देयर वी हैव समथिंग नोन एज एन IRQ एंड आवर इंटरप्ट वेक्टर टेबल, IVT। अब वो चीजें जब CPU के पास कुछ आ रहा है
कि कुछ एरर हो गया है कुछ चलते हुए अचानक से, तो अगर मेरा प्रोग्राम बूट सेक्टर में कुछ एरर है, अब याद रखो कि मेरे सीपीयू ने ये चेक किया था हर जगह कि वो चीज है कि नहीं, वर्किंग है या नहीं। उसने ये नहीं चेक किया था प्रोग्राम रन करके कि प्रोग्राम सही है कि नहीं। तो अगर मेरे प्रोग्राम में ही फॉल्ट है तो वो कुछ तो एरर फेंकेगा मुंह पे। अग्री? तो सीपीयू को कुछ तो हैंडल करना पड़ेगा उसको, या कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उसको हैंडल करना पड़ेगा अचानक से, बीच में से कूद के आ गया कुछ। तो इट मीन्स कि सीपीयू को पहले ही रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अपने पास ऑफ ऑल दिस इंटरप्ट्स कि अगर ऐसा इंटरप्ट आता है तो मुझे ऐसा चीज रन करना है। तो दैट इफ यू गो टू OSDev wiki का वेबसाइट, देन वी हैव समथिंग नोन एज इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल, जिसको IVT भी बोल, वेट लोड नहीं हुआ, हाँ। तो ये सेम ही है, मैंने जो अभी स्विच किया, इट इज जस्ट दैट वो 64 बिट का वर्जन है, ये अभी 32 बिट का वर्जन है। बट थिंग इज कि जो x86 आर्किटेक्चर होता है, x86 को हम लोग जनरली लिनक्स के टर्म्स में 32 बिट मानते हैं, और x86 64 को हम लोग 64 बिट मानते हैं। तो इंटरप्ट वेक्टर टेबल वो होता है जो सारे 256 इंटरप्ट हैंडलर्स को स्टोर करता है एड्रेस उनका, कि ऐसा इंटरप्ट हुआ आया तो क्या करना है हमें। तो ये जो होता है ये कहाँ पे स्टोर होता है, 0 0 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब मेन मेमोरी में सबसे पहले आके बैठने वाला है आपका इंटरप्ट वेक्टर टेबल। वेक्टर टेबल से समझ रहे हो कि अगर मेरे कोड में कुछ डिवाइड बाय 0 था तो उसका इंटरप्ट भी 0 ही है। ये बहुत फनी चीज है, ये चीज याद करने के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर जिसको इंटरप्ट वेक्टर टेबल का थोड़ा बहुत भी आइडिया रखना है जस्ट, तो वो लोग देख सकते हैं कि जो हैंडल करने के लिए भी उसका इंटरप्ट का जो वैल्यू है वो भी 0 है। ठीक है। तो वैसे ही वी हैव समथिंग फॉर ओवरफ्लोस, अगर मेरे प्रोग्राम में ओवरफ्लो होता है अचानक से, तो वो भी एक इंटरप्ट भेजेगा सीपीयू को कि पहले नहीं, पहले ये देखो कि इंटरप्ट आ गया मेरे पास। आगे का छोड़ो, इंटरप्ट मतलब ये है कि अगर मैं प्रोग्राम करते करते मैंने गलती से डिवाइड बाय 0 किया है, तो वो पहले ही इंटरप्ट भेजेगा कि ये तो डिवाइड बाय 0 कर रहा है सीपीयू। तो सीपीयू पहले उसको देखेगा कि अरे ये तो डिवाइड बाय 0 कर रहा है, मैं क्या करूँ। तो वो कुछ ऐसा एरर फेंक के मारेगा कि ये तो डिवाइड बाय 0 है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। समझे? तो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ इंटरप्ट जो यूजुअली हम लोग एरर्स के टाइम रखते हैं, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लोग सिर्फ एरर्स के लिए रखें, हम लोग चेक्स के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपने पेज फॉल्ट सुना होगा कभी, किसी ने पेज फॉल्ट या सेगमेंटेशन फॉल्ट सुना है कभी? हाँ, कहाँ हाँ पे सुना है? सी प्रोग्रामिंग में ये सब चीजों में आपने सुना लाइक है अगर ये? मेमोरी स्टैक मेमोरी ओवरफ्लो हो जाती है तब ना। एग्जैक्टली, तो वैसी चीजें हो तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाता है, आपका पेज फॉल्ट आ जाता है, ये सब चीजें भी यहाँ पे हैंडल होती है इंटरप्ट वेक्टर टेबल में। तो ये सब चीजें यहाँ पे स्टोर रख रहा है कि ये इंटरप्ट कहाँ पे स्टोर्ड है। तो इसका जो डेटा है वो इधर ही स्टोर्ड है, इसका जो डेटा है वो 0018 पे स्टोर्ड है, और उसका इंटरप्ट है 6। तो अगर मैं किसी प्रोग्राम में खुद से कॉल करूँ इंटरप्ट 06, तो वो ये वाला इंटरप्ट को रन कर देगा, इनवैलिड ऑप कोड वाले। तो ऐसी भी चीजें हैं। तो हमें सबसे पहले ये स्टोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए जब मैंने बोला आपको कि हम लोग जो अपना ओएस अपना जो बूट सेक्टर है वो उठा के मेन मेमोरी में लाने वाले हैं, तो हम लोग ने सेक्टर 0 में तो रख दिया, ठीक है, हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है वो। हम लोग यहाँ पे लाके उसको 00 में नहीं रख रहे, क्योंकि यहाँ पे 00 हम लोग को देना है IVT को। क्योंकि अगर उसने डायरेक्ट रन करना स्टार्ट कर दिया 000 से, तो इंटरप्ट अगर आया तो मेरे को पता ही नहीं कि इंटरप्ट हैंडल कैसे करूँ। तो इंटरप्ट जैसी चीज ही नहीं है होगी कुछ। तो पहले मेरे पास वी हैव सम इंटरप्ट्स, ठीक है। देन वी हैव सम एरिया फॉर द बायोस का डेटा, हार्डवेयर के खुद का डेटा, कि हाँ मुझे ये सब रखना है थोड़ा, मैं खुद के चीजें रख रहा हूँ यहाँ पे कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ऐसा है, ये सब चीजें हैं मेरे पास। ठीक है। तो ये सब चीजें भी मैंने रैम में रख ली ताकि सीपीयू को डायरेक्ट एक्सेस रहे उसका। देन मैं जाता हूँ, तो देन व्हाट वी कम इज द बूट सेक्टर का कोड। ठीक है। अब बूट सेक्टर के कोड में वी हैव दिस MBR का लेआउट वगैरह। तो बूट सेक्टर का कोड स्टोर कहाँ पे है, 7C00 में। ओके। तो आई गेस एवरीवन अग्री विथ टिल हियर फॉर माय फ्रॉम माय पॉइंट। are you sorry to interrupt, but we are going a little bit over time. Can you ओके, wrap up quickly, please? अच्छा, ओके ओके। Thank you. Yeah, so that was all I could
टेल अबाउट कि यहाँ तक हो क्या रहा था हमारे सीपीयू में, एंड देन वी गो टूवर्ड सम बूट सेक्टर्स। तो अगर मेरे पास ऐसा कुछ प्रोग्राम है तो मैं उसमें कुछ पैटर्न्स वगैरह बना सकता हूँ। ये एक तरीके का बूट सेक्टर को हाईजैक किया है मैंने। और वेट, आई विल शो यू मोर। क्योंकि मैंने क्या बोला कि बूट सेक्टर में जो भी होगा वो खुद से रन हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा ओएस है वो सबसे डिवाइस है वो सबसे पहले उसको ढूंढने वाला है। तो इफ आई गो टू माय सम ऑफ माय मोर प्रोजेक्ट्स, तो कहाँ पे थे? प्रोग्रामिंग फॉर सम, नो। जस्ट अ सेकंड। Ayush, before you wrap up your talk, it would be really good if you could just summarize everything you said, starting so. यार आई डिडंट नो Just a इतना short टाइम summarization. लिमिट रहेगा, बिकॉज अभी तो मेरे पास बहुत सारे स्लाइड्स थे। हाँ, ओके, आई विल जस्ट गो टू मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इन द स्लाइड्स इंस्टेड, ताकि एटलीस्ट चीज़ें कवर हो जाए। तो ओके, देन वी हैड, एज आई टोल्ड कि हम लोगों ने सिलेंडर हेड सेक्टर से लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसेस में मूव किया। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई कि हम लोग लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसेस से सीक्वेंशियली स्टोर कर रहे थे डेटा 0 1 2 3 4 ऐसे में, इंस्टेड ऑफ बताने के कि हम लोग के कौन से सिलेंडर में कौन से हेड पे कौन सा सेक्टर है। ठीक है। उसके अलावा वी हैव समथिंग खुद का इंटरप्ट जो होता है 13H, जो बताता है बेसिकली कि बायोस का रन होना है। ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन रीड अबाउट। देन वी हैव कि बूट लोडर एक बार स्टार्ट हुआ तो होता ये है कि बूट लोडर के जो MBR पार्टीशन होता है उसके पहले 446 बिट होते हैं बूटस्ट्रैप कोड। बूटस्ट्रैप कोड क्या है? ये या तो बूट लोडर हो सकता है, बूट लोडर मतलब क्या, जो कर्नल को लोड करेगा, या तो हो सकता है बाहर वाले बूट लोडर को रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने वाला। तो अगर कुछ आपका ऐसा कोड है जो रन हो सकता है सीपीयू में और वो कोड बड़ा है इससे, बट अगर मैं किसी तरह मेरे प्रोग्राम का एक्सेस जाके उस लोकेशन पे फेंक पाऊँ उसको इनिशियल डेटा देके, तो वो मैं डेटा यहाँ पे रन कर सकता हूँ। तो वो 446 बिट के नीचे भी मेरे पास इतना डेटा है, 16 16 16 16, बट दिस चार आर नॉट नेसेसरी, बट वी कैन यूज दिस। इससे क्या होगा कि हम लोग पार्टीशंस बनाते हैं। अब सबको पता है कि हम लोग अपने पीसी में पार्टीशंस बना सकते हैं, आई गेस। सो व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग लिनक्स, आप क्या करते हो? आप स्लैश बूट पार्टीशन बनाते हो, स्लैश होम पार्टीशन बनाते हो। तो यू आर बेसिकली वर्किंग विद EFI पार्टीशन। partition. हाँ, EFI पार्टीशंस बनाते हो तो ठीक है। तो EFI तो UEFI में है, वो आगे की चीज़। बट द थिंग वाज कि हम लोग पार्टीशंस बनाते हैं। वो पार्टीशंस कहाँ पे होंगे हमारे मेमोरी में, वो हम लोग पार्टीशन एंट्री में जाके बताते हैं। और पार्टीशन एंट्री में हम लोग कैसे बताते हैं कि हम लोग बताते हैं उसका CHS क्या है। CHS क्या मतलब? सिलेंडर हेड सेक्टर। यही तो मैं बता रहा था कि हम लोग को यूज आएगा कहीं पे बताने में कि है कहाँ पे मेरा पार्टीशन मेमोरी में। तो उसके बाद हम लोग बताएंगे कि कौन सा टाइप का पार्टीशन है। तो लोगों ने क्या किया है, हर एक टाइप के पार्टीशन को एक अलग से कोड दिया। जैसे विंडोज में NTFS होता है तो उसको हम लोग ने कोड दिया है 0x07। ठीक है। तो वैसे ही अगर हम लोग के पास, हम लोग लास्ट सेक्टर का देंगे CHS, लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस देंगे और नंबर ऑफ सेक्टर्स, कितने सेक्टर तक हम लोग का वाला पार्टीशन बना हुआ है। ठीक है। तो अगर एक सेक्टर 512 बाइट का है तो आप खुद से गिन लो कि आपके उस पार्टीशन को कितना देना है नंबर ऑफ सेक्टर्स। तो वो डेटा आप जाके डाल दो। तो ऐसे करके आप बना सकते हो टोटल पैक्ट। इसको पैक्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब आपका पहला अगर उसने बोला है 1 बाइट का तो 1 बाइट का ही होना चाहिए, सेकंड बोला है 3 बाइट का तो 3 बाइट का ही होना चाहिए। ओके। तो वो हर पार्टीशन में जाके स्टोर्ड है, 16 पूरा मेमोरी। इन सबको आप ऐड करोगे मेमोरी में तो 1 + 3 + 1 + 3 + 4 + 4 16 होता है। तो हर एक पार्टीशन एंट्री ऐसे स्टोर्ड है। तो 4 पार्टीशन एंट्री मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि 4 पार्टीशन एंट्री होता है, लेकिन यूजुअली वी हैव समथिंग नोन एज वर्चुअल पार्टीशन एंट्री, एक्सटेंडेड पार्टीशन एंट्री, जो बेसिकली और जो खुद स्टोर करता है लोकेशन ऑफ अनदर पार्टीशन एंट्री, और जो जो नया वाला पार्टीशन एंट्री वो स्टोर करता है ऑफ अनदर पार्टीशन एंट्री।
तो ऐसा यूज करके वी कैन मेक मैनी पार्टीशंस इन आवर ओन डिवाइस। तो इसकी वजह से ये तो डुअल बूट पॉसिबल है हमारे पीसी में, बायोस वाले पे, राइट, बिकॉज वहाँ पे कुछ एक्सटेंडेड पार्टीशन एंट्री जैसा चीज होता है। तो ये चीज यहाँ पे थी। एंड देन वी हैव सम बूट सिग्नेचर। तो बूट सिग्नेचर क्या होता है कि हम लोग को बताना है कि याला सी यहाँ पे जो पार्टीशन टेबल में सबसे पहला चीज है ना, वो ये बताता है कि ये बूटेबल है या नहीं। तो अब जब मैं अपने मास्टर बूट रिकॉर्ड में बूट लोडर रखना चाहता हूँ अगर, तो मेरे को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि बूट लोडर यहाँ पे स्टोर है मेरा और वो बूटेबल है। तो जैसे अगर मेरे पास 3 डिवाइस है, एक मैंने पेन ड्राइव घुसा के रखा है लाइव यूएसबी का, और मेरा खुद का ओएस है, और एक हार्ड डिस्क लगा है, तो अब हार्ड डिस्क बूटेबल नहीं है। सॉरी, मेरे पास एसएसडी है जिसमें कुछ नहीं है, सपोज वो बूटेबल नहीं है। हार्ड डिस्क मेरा बूटेबल है और पेन ड्राइव मेरा बूटेबल है। तो जो बूटेबल है उनके स्टेटस यहाँ पे 0x80 स्टोर करने वाले हैं। ओके, एंड ऐसे करके वी हैव ऑल दोज पार्टीशंस एंड उनका बूटस्ट्रैप कोड कि हम लोग को कहाँ पे भेजना है अपना। तो यहाँ पे वी डिसाइड की बेसिस ऑन लोगों के सेटिंग कि हाँ मैंने बोला है कि मेरा बूट ऑर्डर ये होने वाला है कि पहले मैं लिनक्स लोड करना चाहता हूँ उसके बाद विंडोज़। तो जो पहले वो लिनक्स को लोड करने की कोशिश करेगा, तो वो चीज़ ऐसे होती है। ओके, एंड देन वी गो कि हम लोग ने 446 बाइट में क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते इनफैक्ट। तो हम लोग ना अपने पूरे स्टेजेस में तोड़ देते हैं। अब किसी ने अगर जेन 2 यूज़ किया हो तो उन्हें पता होगा कि हम लोग स्टेज 3 करके कुछ डाउनलोड करते हैं जेन 2 में। जो स्टेज 3 होता है वो होता है कर्नल। तो जिनको जेन 2 पता है उनको ये पता होना चाहिए कि हम लोग के स्टेज 3 के नीचे स्टेज 2 और स्टेज 1 होते हैं। तो स्टेज 1 जो है वो हम लोग का एमबीआर है। अब हम लोग डेढ़ पे आते हैं, डेढ़ पे हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग सिर्फ समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग जहाँ पे जाएंगे कूद के वो किस टाइप का पार्टीशन है। अब पार्टीशन कैसे कैसे हो सकते हैं वो कभी और डिस्कस कर सकते हैं। अगर वो फैट हुआ तो वो टेबल में स्टोर करता है कि डेटा कहाँ कहाँ पे स्टोर है। अगर वो ext4 है तो वो किसी को पता है लिनक्स आई नोड्स में स्टोर कैसे करता है स्ट्रक्चर्स में? हैज एनीवन द आइडिया कि डेटा कैसे नोड्स में स्टोर होते हैं लिनक्स पे? तो वो चीज़ भी तो हमें बतानी पड़ेगी ना कि आप जाके रीड तो करने वाले हो, लेकिन रीड करना कैसे है। तो वो सब हम लोग स्टेज 1.5 पे 1.5 पे एडजस्ट कर लेते हैं। देन वी हैव द स्टेज 2 जहाँ पे हम लोग का ग्रब 2 और ये सारे सॉफ्टवेयर बैठते हैं। सिस्टम डी बूट, ग्रब, आपका विंडोज़ का बूट हो गया जिसका नाम MG ऐसा कुछ है। तो ठीक है, दोज थिंग्स देन गो एंड टू लोड योर कर्नल, एंड कर्नल के बाद दे गो ऑन टू लोड योर इनिट सिस्टम। इनिट सिस्टम इज योर PID नंबर 1, सबसे पहला प्रोसेस जो इनिट होने वाला है। ठीक है, तो दिस वाज द वर्चुअल वे कि कैसे कैसे जाके आपका आई हैव द सोर्सेस इन माय PDFs अगर बाद में किसी को रेफर करना हो। देन वी कम ऑन कि हम लोग के पास फाजम है। हाउ मच टाइम डू यू हैव? Let's try to wrap up in 20 minutes. ओके ओके, तो आई कैन टेल अ बिट मोर टिल देन कि वैसे ही मेरे पास अगर नया कुछ आया है कि CPU से बात कैसे करें। फिर हम लोग को खुद से इंस्ट्रक्शंस देना है, हम लोग को खुद का बनाना है MBR पार्टीशन वगैरह जो भी है, बूट लोडर, बूट सेक्टर। अब मैं आपको अगर मेरे बूट सेक्टर का कोड दिखाऊं, वेट, नो दिस इज नॉट द वन। आई यूजुअली फॉरगेट कि मैं कहाँ पे रखता हूँ। नो, हाँ तो यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा बूट लोडर था कोड। आई वोंट टेल मच, बट हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग सिर्फ 512 बाइट ही दे सकते हैं हमारे बूट सेक्टर को। तो हम लोग को वो लिमिट होके वो चीज़ रन करनी है, राइट? तो आई नीड सम हाईलाइटिंग एज वेल। ठीक है, तो हम लोग को 512 बाइट में वो रैप अप करना है। तो मैंने क्या बोला पहले उसको कि आप जाके मेमोरी में 7C00 में स्टोर करना, जैसा मैंने बोला था कि याद रखो 7C00 में सब स्टोर होगा। फिर हम लोग जाके स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में जाके हम लोग ने
कुछ किया है। आई डोंट हैव मच टाइम टू एक्सप्लेन दिस, बट इफ़ यू गो ऑन टू चेक तो मैं बस हेलो वर्ल्ड ये सब प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ वो इंटरेस्टिंग है। मेरे को 512 बाइट पूरे भरने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि अभी अब ये चीज़ याद रखना कि फिर ओएस को पता कैसे चल रहा है कि 512 बाइट बाद वाला, अगर 512 बाइट के बाद 55AA लिखा रहता है ओएस में, तो ही वो कोड माना जाता है कि ये बूटेबल कोड है। तो इसकी वजह से मैंने लास्ट में जाके 55AA लिखा है। अब जिसको नहीं पता कि मैंने AA55 क्यों लिखा है, उसको लो एंडियन, लिटिल एंडियन और बिग एंडियन में फ़र्क नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन आई राइट AA55 तो वो एक्चुअली में 55AA है। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि अभी तक जितना डेटा है और जो स्टार्टिंग में डेटा है, मीन्स इतना डेटा, इतने में जितना लेंथ लगा है उसको 510 से सबट्रैक्ट करो, तो मेरे को बचा हुआ लेंथ मिल जाएगा कि कितना डेटा भरना बाकी है। और फिर उन डेटा में 0 भर दो, मतलब कुछ नहीं रन होगा। और बाकी डेटा में ये सारे इंस्ट्रक्शंस है सीपीयू के लिए, ठीक है। तो ये जब मैं फैजम से कंपाइल करता हूँ तो फैजम मैं बूट डॉट एजम लिखूँगा और एक बाइनरी फाइल बना दूंगा, तो ठीक है, मैं उसको फिर रन करके वो बाइनरी फाइल को रन कर सकता हूँ। तो मेरे पास वो चीज़ रन हो जाएगी मेरे बूट सेक्टर पे, बूटिंग फ्रॉम हार्ड डिस्क। तो मैंने सीपीयू को खुद से इंस्ट्रक्शन दिए वो 512 बाइट का बूट सेक्टर बना के। अब ये बूट सेक्टर में आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको खुद का एक वायरस बनाना है बूट सेक्टर वाला, तो बूट सेक्टर फाइल अलग से बनानी पड़ेगी और एक वायरस अलग से बनाना पड़ेगा जो बूट सेक्टर को रिप्लेस करेगा। तो दिस वॉज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन की कैसे कर सकते हो। एंड ओके, तो इसको आप अपने डीडी यूज़ करके, मैं आगे बताता हूँ, डीडी यूज़ करके अपने पेन ड्राइव में फ्लैश कर सकते हो और इसको टेस्ट भी कर सकते हो रियल पीसी में जिसमें बायोस होगा ऑब्वियसली। तो ठीक है, तो वी ऑल्सो आई ऑल्सो हैड सम गेम्स इन माइंड बट आई गेस इतना टाइम नहीं है। तो ठीक है, तो बायोस में दिक्कतें बहुत थी कि हम लोग के जो रियल बोर्ड था वो 16 बिट में फंसा हुआ था, एक एक एमबी को ही एड्रेस कर पा रहा था। तो वो जो आपका सॉफ्टवेयर यू आपको दिखता है स्टार्टिंग में EFI वाला, जहाँ पे आप अपने सेटिंग्स, बायो सेटिंग्स वगैरह सेट करते हो, वो सिर्फ 1 MB में ही रन होता है। ओके, तो ठीक है, तो MBR में हम लोग मैक्सिमम 4 ही पार्टीशन कर पा रहे थे, बट एज आई टोल्ड हम लोग ने टेक्निक्स निकाल लिए थे। बट द मेन प्रॉब्लम वॉज कि यहाँ पे डिस्क साइज का भी पंगा पड़ जा रहा था। हम लोग मैक्सिमम डिस्क साइज जो है वो 2 TB तक ही रख पा रहे थे यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ पार्टीशनिंग। हम लोग ने जब एक्सटेंडेड पार्टीशनिंग लाई तब भी हम लोग कुछ ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर पाए। बट यहाँ पे व्हेन वी आर स्विचिंग टू UEFI, तब हम लोग के पास बेसिकली जो लिमिट है ना वो 9.4 आई गेस उसको जिबिलियन बोलते हैं ऐसा कुछ, जेटा बिलियन। तो इतने में हम लोग के पास लिमिट्स है जो हम लोग कभी रीच भी नहीं कर पाएंगे, इतना मेमोरी एग्जिस्ट भी नहीं करता करेंटली। ओके, तो डिस्क साइज इतना आज के टाइम पे नहीं है। तो बायोस के समय पे कोई सिक्योरिटी मॉडल भी नहीं था, लोगों ने ट्राई किया सिक्योर बायोस वगैरह बनाने को, इट इज़ नॉट दैट मच इंटरेस्टिंग। बट जो आपके आज के डिवाइसेस में आप जाके सिक्योर बूट एनेबल कर देते हो विंडोज़ वाले लोग, और जो लिनक्स वाले होते हो जाके बंद कर देते हो सिक्योर बूट को, वो लोग समझते होंगे कि UEFI में हम लोग ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो UEFI में अगर आपका ऐसा कुछ अच्छा वाला PC है तो आप लोग जब अपना फर्मवेयर सेटिंग खोलते रहोगे तो उसमें आप अपना माउस भी चला पा रहे हो। अब आप बहुत सारी चीज़ें कर पा रहे हो, पीछे बढ़िया सा फोटो बना हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है, उसमें बहुत सारे फ़ैन के एनिमेशंस वगैरह लगे हुए हैं, बहुत सारे पेजेस है उसमें। तो ऑब्वियसली 1 MB में नहीं फिट हुआ है क्योंकि अभी हम लोग के पास मेमोरी का कोई लिमिट ही नहीं है। हम लोग .EFI ऐप बना देंगे और हम लोग का जो फर्मवेयर है वही मैनेज करेगा कि हम लोग जाके वो EFI ऐप को रन कर पाए। और विंडोज़ वालों को खुश करने के लिए बता देता हूँ कि जो EFI बाइनरीज वगैरह बनती है वो PE32 फॉर्मेट में बनती है, जो कि विंडोज़ का फॉर्मेट है। अगर आप अपना जाके EXE फाइल का फॉर्मेट चेक करोगे तो वो PE32 या PE64 वो है, पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल। तो विंडोज़ वाले खुश हो जाओ। इससे पहले बताता हूँ कि UEFI विंडोज़ के साथ क्लोजली वर्क किया है एंड मेजर था उस टाइम पे। तो स्टैंडर्डाइजेशन में वो लोग ने डिसाइड किया कि PE32 ही रखते। ओके, एंड ओके, तो यहाँ पे वी हैव द कंप्लीट 32 बिट एंड 64 बिट का एक्सेस फ्रॉम दिस आर्ट, जिसको 64 बिट को हम लोग बोल देते हैं लॉन्ग एड्रेस, ठीक है।
तो ओके, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं ड्यूरिंग और यूएफआई फर्मवेयर सेटिंग्स वगैरह। ओके, देन वी हैव कि यूएफआई में फिर क्या होता है, देन वी हैव डिफरेंट फेजेस इन द यूएफआई एज वेल। सबसे पहले हम लोग का जो है टेम्पररी रैम बनता है। अब जिसको किसी ने ये चीज़ सुना है क्या कि कैसी एस रैम, सॉरी कैश एस रैम, कैसी कैश एस रैम किसी ने सुना है? यस। तो कैश एस रैम इस तरीके, व्हाट या तो कैश एस रैम एक ऐसा चीज़ है जो सबसे पहली चीज़ होती है कि सीपीयू को ऐसा चाहिए कि उसे लगे कि उसके पास रैम है। तो वो क्या करता है, वो कैश अपने आसपास वाले कैश को ही एज ए सॉर्ट ऑफ आर्म की सॉरी रैम की तरह ट्रीट करता है। तो यू कुड रीड अबाउट इट कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। देन इट गोज टू योर पीईआई जहाँ पे वो पीआईएम सॉफ्टवेयर वगैरह को रन करता है। देन इट लोड्स योर ड्राइवर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, आपका कीबोर्ड हो गया, ऐसा वगैरह हो गया, ठीक है। फिर वो बूट डिवाइस ढूंढने की कोशिश करता है कि कौन सा .efi फाइल, अगर किसी ने ग्रब खुद से सेटअप किया है देन उसको पता होगा ग्रब x64.efi फाइल ऐसी मिलती है कुछ, पता है किसी को? हाँ 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 हाँ। राइट, तो वो EFI फाइल ही वो ढूंढता है कि कौन सा EFI फाइल रन करूँ। तो जब आपने सेटिंग करके बताया कि उसको कि ग्रब वाला रन करना है, तब वो ग्रब वाले को ढूंढ रहा है वहाँ बैठ के। फिर वो ग्रब रन हुआ TSL वाले स्टेज में, ठीक है। TSL को बोलते हैं ट्रांजिएंट सिस्टम लोड, मतलब अभी वो ट्रांजिएंट हो रहा है उस जगह से, ठीक है। एंड एट द लास्ट पार्ट वी हैव द रन टाइम, दैट इज आवर OS जो रन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से लास्ट टाइम लेके लास्ट टाइम तक वी हैव डिफरेंट स्टेजेस एंड यू कुड कोड इन दो स्टेजेस एज वेल। तो ठीक है, वी हैव अभी ऐसा होता है कि हम लोग जब है ना हमारे सिस्टम में EFI करके इफ आई शो यू, देन वी हैव दिस LS बूट में लिनक्स के, आई होप एवरी वन कैन सी, वी हैव अ EFI करके फोल्डर सर, एंड उसके अंदर वी हैव समथिंग नोन एज EFI, एंड उसके अंदर वी हैव समथिंग नोन एज ग्रब, एंड उसके अंदर वी हैव अ ग्रब एंड EFI फाइल, यू ऑल कैन सी। तो ये चीज़ है जो सबसे पहले रन हो रही है मेरे पीसी में, ग्रब। ओके, तो वो ग्रफ EFI को ढूंढ के जाके रन करता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट है आपके पास तो बूट MGFW ऐसा उसका बूट मैनेजर का नाम है, वो रन करता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका खुद का रन करो आप, तो आप वो भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप खुद का EFI फाइल बना सकते हो जो कुछ भी कर सकता हो, जरूरी नहीं वो बूट लोडर हो, ठीक है। अब हम लोग के पास कोई मेमोरी का लिमिट नहीं है तो हम लोग EFI फाइल में कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर किसी को पता है कि आप जब लेनवो वाले आदमी को बुलाते हो तब वो एक पेन ड्राइव लाता है और वो पेन ड्राइव लगाता है और वो पेन ड्राइव से चेक करता है कि सारी चीज़ें काम कर रही है कि नहीं। किसी ने वो देखा है? तो होता क्या है कि वो लोग का प्रोप्राइटरी डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर होता है UEFI में, जो वो लोग उस पेन ड्राइव में फ्लैश करके रखते हैं। तो वो जब आपके पीसी में लगता है तब वो वाला EFI फाइल रन होता है और वो हर चीज़ चेक करके उनको बताता है कि हाँ इसका तो डिस्प्ले ख़राब है, अंदर से ख़राब है, जला हुआ है, जो भी है। तो वो लोग उससे पता करते हैं। ओके, तो यहाँ पे DD को डिस्क डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छे से यूज करना है इसको, बिकॉज अगर आपने इसको अच्छे से परमिशन देके कुछ भी बोल दिया तो वो जाके ओवरराइट कर देगा वहाँ पे। ओके, तो DD एक्चुअली में क्या है कि वो ब्लॉक बाय ब्लॉक चीज़ों को बस कॉपी करता है। ब्लॉक बाय ब्लॉक मतलब क्या कि वो एक अमाउंट ऑफ डेटा उठाएगा, उसको जाके पटक देगा दूसरे लोकेशन पे। अब वो ब्लॉक कितने साइज का होगा वो भी हम बता सकते हैं, और कहाँ से लेके कहाँ पटकना है वो भी हम बता सकते हैं। तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग को चाहिए कि हम खुद का इमेज बना पाए, खुद का OS का इमेज बना पाए। अब लोगों ने देखा है कि आपको ISO फाइल मिलता है काली लिनक्स का, एवरीवन नोस। या तो ISO फाइल किस चीजों के साथ पैक है? ISO फाइल में क्या क्या पैक्ड है? तो जब आप वो पीसी में लगाते हो तब अचानक से आपके सामने खुल के आता है वो उनका काली लिनक्स का बूट लोड है। उसमें लिखा रहता है काली लिनक्स लाइव इंस्टॉल, काली लिनक्स ग्राफिकल इंस्टॉल, ये सब चीज़ें लिख के आ रही है उसमें। तो वो सब चीज़ें कहीं से तो आई हैं। तो होता यह है कि हम लोग वो पेन ड्राइव में एक ISO फाइल हम लोग खुद का एक बनाते हैं, डिस्क इमेज, ठीक है। एक .img फाइल बनाते हैं, सपोज IMG फाइल
ISO के साथ थोड़ा वर्क करना डिफरेंट है, बट समझो .img फाइल बनाई मैंने और फिर मैंने ब्लॉक बाय ब्लॉक कॉपी किया कि मेरे को सबसे पहले इतने जगह पे मेरा बूट लोडर रखना है, फिर आगे ये रखना है, आगे वो रखना है, ऐसे मैंने ब्लॉक बाय ब्लॉक कॉपी कर लिया। सिंपल एज दैट, ठीक है। एज लॉन्ग एज सही चीज़ें सही जगह पे हो, उसके बाद पीसी डजंट केयर, उसको सही चीज़ें सही जगह पे मिल रही है वो उसको रन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि कभी भी सूडो के साथ रन करते समय ठीक से रन करना। आई विल शेयर टू एवरीबॉडी। तो अगर आपके पास बूट लोडर का इमेज है और वो आपको जाके पटकना है एक पेन ड्राइव में, तो जिसको रूफस वगैरह से प्यार है, आप सिंपल से एक लाइन में चीज़ें कर सकते हो, रूफस क्यों डाउनलोड कर रहे हैं, ओके। तो ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि आपको एक ब्लैंक इमेज बनाना है, तो किसी को पता है कि लिनक्स में /0 होता है? तो अगर मैं इसको रीड करने को ट्राई करता हूँ, वेट, I did not वेट थिंक तो बेसिकली एक ऐसा फाइल है जो बस जीरो फेंकता है सामने, ओके। तो थिंग इज कि आप जीरो फेंक सकते हो किसी एक लोकेशन से दूसरे जगह पे। तो आपने डिस्क इमेज बनाया पहले ब्लैंक, आप इस फाइल से उठा रहे हो जीरोस को और अपने डिस्क इमेज में पटक दे रहे हो 1 MB बाय 1 MB, और आप ये 64 टाइम्स कर रहे हो तो आपके पास 64 MB का इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो इफ आई शो यू एन लाइव एग्जांपल, तो इसने बोला कि हाँ रिकॉर्ड आउट एंड टोटल 64 MB कॉपीड, एंड मेरे पास एक डिस्क डॉट इमेज फाइल आ गई, ठीक है। अब मैं वो डिस्क इमेज में पटकना चाहता हूँ मेरा बूट डॉट बिन वाला बाइनरी, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास क्या है कि मैं बूट लोडर को जाके राइट कर सकता हूँ किसी आउटपुट फाइल में। तो मैं उसको कैसे करूँगा, वेट, हाँ, मैं यहाँ से उठाऊँगा। तो मैंने क्या किया कि मैं 512 बाइट का जो मेरा बूट लोडर है उसको मैं जाके यहाँ पे आउटपुट फाइल जो है मेरा डिस्क इमेज, इसमें जाके पटकूंगा और उसका नाम है बूट डॉट बिन, ठीक है। तो ये बूट डॉट बिन वहाँ पे जाके कॉपी हो गया, ठीक है। तो मेरा इमेज बन गया। तो ठीक है, अब ये इमेज बन गया, हम लोग आगे आगे आते हैं। अब वेट, क्यों कहाँ पे गया, आई गेस आगे, वेट, ओके। सो क्यूमो आई गेस वो भी उड़ गया कहीं पे। हाँ, तो आई जस्ट ब्रीफली ख़त्म करता हूँ कि आपको खुद के EFI ऐप्स बनाने हैं तो दो तरीके की चीज़ें हैं, दो तरीके के तरीके हैं आपके पास। तो फर्स्ट वे इज़ योर GNU का खुद का चीज़ जो है GNU EFI। तो GNU हर जगह आ जाती है, उनका चीज़ें छोटे मोटे काम करने के लिए ठीक है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स मत बनाओ इस पर। टॉय प्रोजेक्ट्स यू ऑल कैन मेक यूजिंग GNU EFI, एंड आप उसका बहुत ईजी है वर्क करना उसके साथ। आपको सिर्फ अपने में libgnu EFI इंस्टॉल करना है अपने OS के कॉरेस्पॉन्डिंग, एंड आप खुद के EFI फाइल्स वगैरह कंपाइल कर सकते हो। फिर आपको जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो लिंकर के बारे में होना चाहिए कि लिंकर क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉपी कैसे आप कॉपी करते हो ऑब्जेक्ट को, मतलब आप डायनेमिक लिंकेबल को आप EFI में कन्वर्ट कैसे करोगे वो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, एंड फ्री स्टैंडिंग बाइनरीज कैसे बनाते हैं वो नॉलेज होना चाहिए। तो वो फ्री स्टैंडिंग कैसे है वो आपके लिए मैं होमवर्क रखता हूँ, ठीक है। देन वी हैव समथिंग नोन एज अ सिस्टम टेबल। अब ये जितने भी EFI वगैरह सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाने की कोशिश करते हैं। तो इफ़ यू सी ओवर हियर, तो सिस्टम टेबल डॉट कॉन इन डॉट वेट फॉर की, तो ऐसी टाइप की चीज़ें जो है ये GNU EFI आपको देता है कि आप एक तरीके से जाके UEFI के जो स्पेसिफिकेशन है उनके पूरे 2000 पेजेस का जो स्पेसिफिकेशन है उसको पढ़ो। उसमें देखो कि हाँ सिस्टम टेबल के अंदर कंसोल आउटपुट है, कंसोल इनपुट है। तो अगर मेरे को वो लोग के खुद के कॉन्स्टेंट्स भी है, जैसे फर्मवेयर का वर्जन प्रिंट करना है, तो मैं सिस्टम टेबल के अंदर जाके फर्मवेयर वेंडर को ढूंढ सकता हूँ। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुझे वो प्रोवाइड करता है सिस्टम टेबल के अंदर। तो इमेज हैंडल में क्या होता है, वो उस इमेज का हैंडल देता है। सिंपल ऐसा कि जो EFI फाइल बनने वाली है उसके रिलेटेड कुछ आपको उसका पॉइंटर दे रहा है, ओके। तो ठीक है, अब यहाँ पे LQ है, तो L अगर किसी को वाइड स्ट्रिंग्स नहीं पता तो जाके पढ़ लो।
क्योंकि ये चीज़ इसमें नहीं है, ये चीज़ सी में भी होता है। ओके, तो वैसे ही आपको थोड़ा बहुत GNU EFI के बारे में नॉलेज हुआ, तो आप लोग फ्री स्टैंडिंग बाइनरीज कैसे बनाते हो वो देखना है। फ्री स्टैंडिंग बाइनरीज क्या होते हैं कि हम लोग के यहाँ पे libgcc नहीं है, क्योंकि जब आपका EFI चलता है तब आपका कोई libc बना नहीं है, क्योंकि आपका कर्नल ही नहीं आया है। कर्नल आएगा लिनक्स का तब जाके आपका libgcc चलेगा, फिलहाल कर्नल ही नहीं आया है, तो आपका EFI वगैरह में आप यहाँ पे इंक्लूड conio.h stdio.h वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको फ्री स्टैंडिंग बाइनरीज बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग के ये नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कस्टम अपना बताते हैं कि कहाँ पे स्टार्ट करना है, तो वो सब चीज़ें GNU EFI देख लेता है। देन यू लिंक द शेयर्ड ऑब्जेक्ट, तो ठीक है, वो आप उसको लिंकेबल बाइनरी यूज़ करके बनाते हो, तो ठीक है, वो यू ऑल कैन स्टडी ऑन योर ओन। फिर उसको हम लोग PE32 में कन्वर्ट करते हैं, एज आई टोल्ड कि जो EFI का फॉर्मेट है वो PE32 है, मतलब विंडोज़ वाला फॉर्मेट है। ठीक है, तो आप ये भी थोड़ा देख सकते हो। देन ओके, आई वुड लाइक टू टॉक वन मोर थिंग अबाउट OVMF। ये एक तरीके का ओपन वर्चुअल फ्रेमवर्क है, सॉरी ओपन फर्मवेयर का फ्रेमवर्क है। तो अगर आपको खुद के प्रोजेक्ट के लिए एक ओपन सोर्स फर्मवेयर चाहिए कि जिस पे आप टेस्ट कर पाओ, तो आप OVMF ट्राई कर सकते हो। ओके, अनदर वन इज टियानो कोर, जो EDK2 प्रोवाइड करता है। EDK2 इस कंप्लीट तरीके का लाइक यू कुड से अ कंप्लीट फ्रेमवर्क जो सब कंपनीज यूज करते हैं, जिनको जो भी बनाते हैं आज के टाइम पे। यूजुअली सारे OS, सारी फर्मवेयर वेंडर्स जितने भी आपके कंपनीज है, लेनोवो वगैरह, सब इसी में बनाते हैं अपने फर्मवेयर्स। ओके, तो इसमें कैसे होता है वो सब चीज़ें, तो आई गेस टाइमिंग तो एंड होने वाला है, बट आई विल शेयर द स्लाइड्स। बट आप देख सकते हो कि यू हैव टू मेक योर ओन DSC फाइल्स, डिस्क्रिप्शन फाइल्स एंड योर C प्रोग्राम्स। एंड यहाँ पे भी C प्रोग्राम्स समवॉट सिमिलर होते हैं कि हम लोग सिस्टम टेबल और इमेज हैंडल लेते हैं, बट दिस प्रोवाइड्स यू विथ मच मोर ऑप्शंस। एंड देयर इज समथिंग नोन एज GOP। GOP से ये होता है कि हम लोग ग्राफिकल प्रोग्राम्स बना सकते हैं। जैसे आज के डेट में हम लोग देखते हैं अपने में कि हमारे पास माउस का भी एक्सेस होता है, हर चीज़ का एक्सेस होता है हमारे ये फर्मवेयर के अंडर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ओके, तो GOP के बारे में है समथिंग्स कि आप कैसे अपने पूरे डिवाइस में पीछे ब्लू बैकग्राउंड लगा दोगे, आगे ऑप्शंस दे दोगे बंदे को कि क्या क्या ला सकते हैं। सिंस वी डोंट हैव एनी स्टोरेज के लिमिट्स, तो आप कितना भी बढ़िया प्रोग्राम बना सकते हो। ओके, so this was mostly everything about की जो talk करना था, and I hope you all liked it, and I will share the slides, you all can go through it, and this was a journey of the complete OS का boot process. Yeah. हम क्लासिकल जो बायोस वाले बूट सेक्टर थे ना, वो बायोस में एज आई टोल्ड कि आगे जाके सिक्योरिंग पॉलिसीज आ गए थे, तो वो तो वहाँ पे भी ख़त्म हो गए थे। बट द थिंग इज़ कि आज के डेट में भी UEFI में भी वायरसेस आते हैं, और अब तो मालवेयर्स आते हैं पूरे पूरे। तो ये क्यों होता है? बिकॉज करंटली वी आर वर्किंग विद PE32 बाइनरीज, एज आई टोल्ड यू अल्पेश, राइट? तो एक तरीके के हम लोग के पास जो है विंडोज़ के ऐप ही हो गए, समझ लो। तो अगर वो है आपके पास, देन यू कैन समहाउ रिवर्स इंजीनियर देम, यू कैन वर्क विद देम, वर्क अराउंड देम। आप उसको रिवर्स इंजीनियर कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, रूट किट्स बना सकते हो। तो UEFI आने के बाद उल्टा सिक्योरिंग पॉलिसीज बढ़ ही गए थे। बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिक्योरिटी इश्यूज UEFI में भी आते हैं। तो यू डू यू नो अबाउट ब्लैक लोटस? हाँ, हाँ, यू शुड चेक आउट ब्लैक लोटस। वो एक CVE था जो विंडोज़ का बेसिकली बूट किट, रूट किट जो कर्नल पे आ जाता है उसको बूट किट बोलते हैं। तो ब्लैक लोटस वॉज अ फेमस बूट किट जो विंडोज़ में हुआ था। तो यू कैन रीड अबाउट इट कि ब्लैक लोटस क्या है। एंड ऐसे और भी है जो इश्यूज तो आते रहते हैं हमेशा। थिंग इज कि हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ क्या क्या मिले यहाँ पे। अब हम लोग के पास लिमिट नहीं थे, तो UEFI वेंडर्स भी खुश हो गए और फर्मवेयर वेंडर्स भी कि वो कितने भी ऑप्शंस दे सकते हैं अपने
यूज़र को कस्टमाइजेबल बना सकते हैं, मेमोरी ज़्यादा अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। जो आज के टाइम में हम लोग जीपीटी पार्टीशनिंग यूज़ करते हैं, वो हम लोग कितने ज़ेटाबाइट तक के स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं उसको। जो पार्टीशनिंग सिस्टम है हमारा बहुत स्केलेबल है आज के डेट में। तो इट इज़ एन आई थिंक एन इक्वल कॉम्प्रोमाइज़ दोनों डायरेक्शंस में। तो थिंग इज़ कि यू कैन स्टिल फाइंड आउट मैनी वर्क्स इन यूएफआई। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, एम्बेडेड सिस्टम्स में बहुत मिल जाएंगे इजीली आपको। तो दोज आर थिंग्स दैट यू कैन चेक आउट। Yeah, does anyone have any questions? मेरे को एक डाउट था। Again, yeah, sure. ओके Yeah, chip ओके in. थैंक्स। जो सेक्टर 0 से हार्डवेयर में वो जो इंस्ट्रक्शंस थे वो जो मेन मेमोरी में जाते हैं 7C00 पे, तो लाइक वो कैसे होता है? हाँ, तो इट इज बेसिकली एज आई टोल्ड ना कि कंप्लीटली हार्डवेयर साइड पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो हो क्या रहा है ना कि जब सीपीयू एसपीआई फ्लैश के पास गया ना वो चीज़ उठाने को, तब आपके जो रजिस्टर्स होते हैं सीएसआईपी, वो उस जगह पे रीसेट वेक्टर पे पॉइंट कर रहे थे। रीसेट वेक्टर पे उसको मिला कि उसको जाना कहाँ पे है, ठीक है, वो फर्मवेयर का इनिशियल कोड। तो वो उसको वहां से समझ गया कि उसको जाना है यहाँ पे रैम इनिशियलाइज करने को। तो जो बायोस का कोड था उसने वो चीज़ें हैंडल की जो रीसेट वेक्टर पे बैठा था, कि उसको जाके सेक्टर 0 से उठाना है चीज़ों को। मेक सेंस? ओके ओके, आई लुक इनटू इट। या मेरा डाउट इसके बूट सेक्टर वायरस के रिगार्डिंग था। उसको इतना लो लेवल एक्सेस मिलता कैसा था? सी थिंग इज कि मेमोरी आप मेमोरी का एक्सेस तो क्या ही है, आपके पास सिंपल ही अगर प्रिविलेज हो देन यू कैन चेंज दी मेमोरी की कहाँ से कोई उठा रहा है। ओके, मतलब अगर मेरे पास डिस्क का पूरा एक्सेस मिलता है मुझे, इफ आई गिव सम सॉर्ट ऑफ अ प्रिविलेज कि, या मैंने बोला विंडोज़ में मुझे अचानक से पॉपअप आया कि हाँ ये तो मैंने गेम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, मैं इसको प्रिविलेज दे देता हूँ, मांग रहा है मुझे, मैंने दे दिया उसको, बट आई डोंट नो कि उसने एग्जैक्टली क्या मांगा। तो वो अगर उसने डिस्क का राइट स्टोरेज मांग लिया पूरा, ठीक है, तो सिंस उस समय में ऐसा कुछ नहीं था कि यूजर मोड कर्नल मोड अलग होते थे, तो राइट कॉल करना पड़ता मुझे, फिर वो प्रिविलेज मोड में जाता। तो ठीक है, ये हम लोग उस समय की बातें कर रहे हैं। तो जो डॉस जैसे एमएस डॉस होता था, जो बूट सेक्टर वायरस है ना, एमएस डॉस पता है सबको, उसमें या बहुत कॉमन है, क्योंकि लोग ऐसा प्रोग्राम दे देते थे दूसरों को, जो लोग रन करते थे, और एमएस डॉस में ऐसा कुछ होता नहीं था कि लिनक्स जैसा रिंग वाला सिस्टम हो गया मल्टी कर्नल में, कि रिंग 0 पे हार्डवेयर है, फिर ऊपर ऊपर आते आते हम लोग के पास एक्सेस जो है वो कम होते जाता है। तो वैसा सिस्टम नहीं था उस समय, उस समय जो था वो था। तो अगर आपके पास किसी तरह एक बार डिस्क का एक्सेस है, तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि डिस्क में कहाँ क्या स्टोर होना है। और अगर आपके पास वो एक्सेस है, तो आप जाके वो जीरो जहाँ से वो कोड उठा रहा था 00 आपके लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस से, या फिर सीएचएस में जैसा मैंने बताया सेक्टर 0 से, तो वहाँ जाके खुद का प्रोग्राम डाल सकते हो। तो एज लॉन्ग एज यू हैव दैट एक्सेस, तो आप वो चीज़ें कर सकते थे। मेक सेंस? थैंक यू। और प्रिविलेज एस्केलेशन इज अ थिंग, आई गेस सिक्योरिटी वालों सबको पता होगा कि हम प्रिविलेज एस्केलेशन कब हमेशा से होते आ रहे हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लोग ही प्रिविलेज दे। डज एनीवन हैव Yes, एल्स? it's mostly misconfigurations. हाँ एग्जैक्टली वही। अब ओएस तो परफेक्ट बनता नहीं किसी से, क्या क्या व्हाट? हाँ एग्जैक्टली वो तो मेरे साइड का इशू, बट ओएस साइड के भी तो इशू हो सकते हैं। जैसे कि विंडोज का एक इशू रहता है, वो पाथ सही से मार नहीं पाता। ठीक है, हाँ तो ये एक बहुत कॉमन है कि भाई सर्विस में जो पाथ रहता है वो कोटेड स्ट्रिंग डालते हैं, अगर बड़ा पाथ रहा तो, और स्पेसेस हाँ, वगैरह कुछ रहा तो। इनफैक्ट अब विंडोज में स्पेस, ये भी इशू है कि
विंडोज और लिनक्स में अगर तुम लोग देखोगे तो विंडोज फाइल्स को एक्सेस करने के लिए ज़्यादा वो अच्छा नहीं है। प्रोग्राम्स को एक्सेस करने के लिए लिनक्स से अच्छा है सॉर्ट ऑफ, बट फाइल्स को एक्सेस करने के लिए वो उतना अच्छा नहीं है। हैज एनीवन नोटिस दिस थिंग? हाँ, बिकॉज वो कभी कभी ये लेता है ना, एज इट इज पकड़ता है ना। जैसे कि अगर स्पेसेस रहेंगे तो अगर समझ ए प्लस ए स्पेस बी रहेगा तो वो पहले स्लैश ए में जाएगा, फिर स्लैश ए स्पेस बी में जाएगा। नहीं, वो तो बहुत माइनर है ना, वो तो ऐसी चीज होगी ना कि बस मेरे को पार्स करना है उससे प्रॉपर्ली। अच्छा श्योर। ये रिकॉर्डिंग हो गई क्या भाई?